वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब हम आ गए हमारे 5th चैप्टर की तरफ जो है मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट जैसे कि आप सबको पता है, तो फिर भी मैं इसे ट्राई करूंगा जल्द से जल्द कवर करने, छोटे से छोटे टाइम में जितना पॉसिबल हो। सो लेट्स फर्स्ट गेट ऑन विद द जनरल पॉइंट्स। जनरल पॉइंट्स है 12 पॉइंट जो कि आपके हैंडरिटन नोट्स में। लेट्स सी मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, जैसे कि सेक्शन नंबर 173(1) में बोला गया है रीड 173(5) बोर्ड लेनी चाहिए। कौन कॉल करेगा? प्रॉपर अथॉरिटी। नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग गिवन शुड बी गिवन एज पर 173(3) एंड एटलीस्ट 7 days नोटिस टू बी गिवन। शॉर्टर पॉसिबल, उसके अलग 173 में रूल्स है। नाइदर द बिजनेस नॉट द पर्पस नीड टू बी स्पेसिफाइड, ऑब्वियसली नोटिस में। रिक्वायर्ड कोरम मस्ट बी प्रेजेंट, वो 174 डील करता है। लॉ डज नॉट प्रिस्क्राइब प्लेस, टाइम एंड डे ऑफ बोर्ड मीटिंग एज अगेंस्ट जनरल मीटिंग का अलग है। प्रॉपर पर्सन मस्ट बी इन चेयर, मिनट ऑफ बोर्ड मीटिंग मस्ट बी केप्ट एज पर 118 एंड डायरेक्टर मस्ट साइन द अटेंडेंस बुक। रिजोल्यूशन ऑफ सर्कुलेशन इज पॉसिबल लाइक 175 में, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे डेलीगेट पावर ऑफ टू कमिटी ऑफ डायरेक्टर और एनी ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। So let's start with the first point, that is voting at board meeting. How do you think they vote at board meeting? So every director has one vote, and questions at board meeting are decided by majority. Only those directors who are present in the meeting and vote on a resolution are considered by determining majority. That is, a director who is absent at board meeting or who are abstaining from voting at the board meeting will be ignored. Chairman of the board may use his casting vote. That is, casting vote is second vote. In the case of equality of votes, if there are 50% votes on yes and 50% on no, so chairman can use his casting vote, that is second vote, another vote, to decide the matter either yes or no, as the case may be. Unanimous resolution is required in following cases. These are examples. Some are like power to make loan, give guarantee, make investment. Unanimous decision means everyone should agree. If everyone are agreeing, that is not unanimous resolution. Appointing a person as MD who is already a MD or manager in another company. These two things require unanimous agreement. Resolution. The director shall not participate if he is interested. Obviously, board resolutions are binding on all, even those who are absent or those who are abstained to vote or those who have voted against. Once a resolution is passed, it's binding on entire company. So, director cannot appoint a proxy. Even AOA, that is association. Article of association cannot empower a director to appoint a proxy. So let's start with section 173(1) here. 173(1) and 175 are like together, so they are like number of board meetings. First board meeting should be held within 30 days of its incorporation, and subsequent board meeting के बारे में बोला है कि at least 4 board meetings in every calendar year. And not more than 120 days gap should be there between two board meetings. And not required to hold board meeting in every quarter of the year. ऐसा नहीं कि हर क्वार्टर में एक बोर्ड मीटिंग चाहिए, एटलीस्ट एक कैलेंडर ईयर में 4 बोर्ड मीटिंग्स चाहिए, और 2 बोर्ड मीटिंग्स के बीच का गैप 120 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेक्शन 8 कंपनीज के लिए बोला है कि एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स में एक बोर्ड मीटिंग आपको रखना है। 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोमिनेंट कंपनी को एटलीस्ट एक बोर्ड मीटिंग रखना है ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर में, and gap should not be less than 90 days. Director absents in all board meeting for 12 months. क्या होगा? Last chapter याद करो, 167. He will vacate his office. अब बोर्ड मीटिंग इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से भी की जा सकती है। अब इलेक्ट्रॉनिक मोड के बारे में उन्होंने बहुत सारे छोटे पॉइंट्स दिए कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में कैसे लेते हैं मीटिंग, मैं फास्ट में बताता हूँ। सो सबसे पहले है डायरेक्टर में अटेंड बोर्ड मीटिंग इन पर्सन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। इसमें देखना है आपको सिस्टम ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो भी है, इट शुड बी कैपेबल टू रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्ड द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर एंड रिकॉर्ड द स्टोरिंग एंड मतलब रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग अलॉन्ग विद डेट एंड टाइम। इसमें एक प्रोहिबिशन का नीचे पॉइंट इंपॉर्टेंट, प्रोहिबिशन ऑन ट्रांजैक्टिंग सर्टन मैटर्स बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो दे हैव प्रोहिबिटेड दिस फॉलोइंग मैटर्स टू बी ट्रांजैक्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग, लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले। उन्होंने बोला है कि CG may is empowered to specify certain matters that should not be dealt with in video conferencing, and even CG by exercising एक notification उन्होंने पावर अपनी एक्सरसाइज भी की है, कुछ 5 पॉइंट्स उन्होंने बोले हैं। The following matters shall not be dealt with in any board meeting held through video conferencing or any other audio visual means. पहला, approval of annual financial statements. Annual financial statements आपको face to face बैठ के ही सॉल्व करना, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं कर सकते।
Approval of the board's report face to face, approval of the prospectus face to face, meeting of the audit committee for consideration of financial statements, it has to be face to face, and approval of the matter relating to amalgamation, merger, demerger, acquisition, and taking over. These are big issues that needs personal presence, like there. And then procedure for conducting meeting of board through video conferencing or other audio visual means. इसमें ऐसा है, इसमें necessary arrangement आपको रखना है ताकि कोई कंफ्यूजन या कोई फेलियर, ऑडियो विजुअल फेलियर ना हो. इंटीग्रिटीज आपको देखना है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हार्डवेयर इक्विपमेंट्स आपको देखना है, प्रोसीडिंग रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, और रिकॉर्ड हो रही है तो स्टोर सेफली हो रही है कि नहीं, उसका सेफ कीपिंग कौन देख रहा है. ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का रूल्स छोटे दिए हुए हैं. सब एक में को सुन पा रहे हैं या नहीं, एंड इफ देयर इज समवन डिफरेंटली एबल्ड, उसके लिए कुछ अलग प्रोविजंस किए हैं कि नहीं. नोटिस हर डायरेक्टर को गया है कि नहीं, बिकॉज इफ व्हेन यू डायरेक्टर रिसीव्स नोटिस दे हैव टू स्पेसिफिकली respond कि I am going to attend personally or I am going to attend through video conferencing. So ऐसे कुछ points हैं. मीटिंग के स्टार्ट में रोल कॉल लिया जाता है, इसमें नेम, लोकेशन, एजेंडा, और ये भी पूछा था कि किसी बैकडोर एंट्री तो नहीं है, किसी और को भी एक्सेस तो नहीं है इस मीटिंग का, जो कि अनऑथराइज एक्सेस तो नहीं जा रहा है. So there are many points like this. Exam oriented नहीं है, so I'll just skip that much part. And let's get to notice part of the chapter 173 and 173.4. So notice of a board meeting के बारे में बोला, it should be in writing and should be sent to every director, and no waiver of notice is ever allowed. And what will happen if there is improper notice? The meeting would be held void, and ratification of improper notice is possible. Mode of delivery should be hand delivery or post or electronic means. And where would you deliver? At address registered with the company. The address may be Indian or abroad. Notice for original meeting holds good for adjourned meeting as well, except where the articles of association or requires that a fresh notice should be given for adjourned meeting as well. So in that cases, so there are two exceptions likewise. Like if you generally notice of original meeting is good for adjourned meeting as well, but except fresh notice will be required if AOA requires that you have to send a fresh notice, or board meeting is adjourned sine die. This means sine die is indefinite period. So we have adjourned the board meeting for indefinite period. So whenever next time we have adjourned, we have decided to take that board meeting, at that time fresh notice will be required. And shall be given at least 7 days before board meeting, and short notice is possible, but for short notice I have made very good, as you can see, chart here. So there can be two situations, right? The first is appointed one or more independent director, and that you have not appointed any independent director, or that your company does not have to appoint an independent director. So in first situation, board meeting called to transact some urgent business, because in case we have to do some urgent business, in that case only we are allowed to give shorter notice. So if we assume that some urgent business to be transacted, and that at least one independent director is present in that board meeting, or if no independent director is present, and this discussion will be final only on ratification thereof by at least one independent director. So whatever decision we have done, we will circulate, and at least one independent director should revert over it, and that she should ratify that, and then and only then that discussions would be final. In case of shorter notice of board meeting where independent directors have been appointed. What if we don't have to appoint independent director? In that case, and board meeting is called for some urgent business, and shorter notice would be possible, and no other provision would be required to be compliant. So next part is content. What do you think would be contained in the board meeting, the notice of board meeting? So day, place, date and time of board meeting. Agenda of board meeting. So this is a very specifically it is written. Agenda may or may not be sent normally by following matters, but specific notice. Now we're talking agenda may or may not be sent normally, but following matters need specific notice. Well, normally you don't have to send agenda, but this matters which I have written, 3 matters require specific notice. First one is a person who is already a managing director or manager of another company is appointed as MD of the company. If you recall correctly, for this transaction you need unanimous resolution, and so specific notice is also required along with unanimous resolution, right? And company enters into contract or arrangement with related parties that needs specific notice. And a person is appointed as MD, WTD, manager of the company. So even if you are appointed this 196.4, we can cross reference this to you.
and it does not apply to private company and government company. So in this third case, you have to give all the terms of appointment of the director. Notice should include details regarding business to be transacted, relevant documents and information should also be given along with the notice. And what are the penalty for default? Officer responsible will be liable to pay rupees 25,000. Up to. Next is quorum. Yeah. Notice penalty will be officer of the company's duties to give notice of the board meeting and who fails to do so shall be liable to a penalty of rupees 25,000. So this penalty is fixed 25,000, right? Now, quorum of board meeting. So quorum generally is higher of 1/3 of total strength or 2 directors. Higher of 1/3 of total strength or 2 directors. And 1/3 to 100 of is 1, any fraction. And for section 8 companies, the lesser, that is lesser of 8 members or 25% of its total strength, and but it shall be not less than 2. Okay, 8 members or 25% of total strength. Lesser of it we are saying this side. And normal case, if we see 1/3 of total strength or 2 directors. Now in case of section 8 companies, we'll see 8 members or 25% of total strength. Subject to it should be more than 2. What if the interested directors are more than 2/3 of the total strength? Rounded up as 1. What if interested directors are more than equal to 2/3 of total strength? In that case, quorum shall be higher of number of remaining directors, that is disinterested directors, present at the meeting or 2 directors. So AOA can give higher quorum but not lower. Total strength shall not include directors whose places are vacant. This is very important. If they ask you a practical question, you need to know that total strength shall not include directors whose places are vacant. And if there are interested directors more than 2/3 of total strength, then you will have to the quorum would be disinterested directors if they are more than 2. 174(4). This board meeting. If there is no quorum at the board meeting, then what will happen? So automatically the meeting would stand adjourned the same day next week. That is, obviously it should be a working day. If that is not a working day, next working day would be shifted to same time, same place, and no fresh notice is required. We have already studied this, that no fresh notice is required for adjourned meeting, except I have also given you 2 cases where fresh notice will be required. If AOA requires or a meeting is adjourned same time, that is for indefinite period. And Companies Act 13 is silent in respect of situations where a board meeting is adjourned due to want of quorum, and again the quorum is not present at adjourned board meeting. So here we have to keep ICI's view at play, because author's view may or may be correct but won't grant you the marks. So adjourned board meeting, and what author says is adjourned board meeting cannot be held because board meeting shall stand dissolved or cancelled. If at adjourned board meeting also there is no quorum. But what ICI said, that generally ICI assumes in the question that the quorum is present in the adjourned board meeting. Now go to section number 174(2), that is continuing directors. So continuing directors may act notwithstanding vacancies. See, if and so long as the number of directors is reduced below the quorum fixed by the act, the continuing directors cannot act for any purpose other than these 2. So this is a situation where continuing directors, see, generally continuing directors may act notwithstanding vacancies. How may whatsoever the amount of vacancies may have done, but continuing directors may act. But what if even so long as the number of directors is reduced below the quorum fixed by the act? Imagine if it's less than 2 or only 1 director is remaining. In that case, the continuing director cannot act for any purpose other than 2. He can do just 2 things. One, he can increase the number of directors to that fixed for the quorum, or second, he can summon a general meeting of the company. Quorum to be present throughout the meeting. It's not that while calculating each and every, while deciding on each and every matter, the quorum should be checked. And so quorum should be presented throughout the meeting. Section 174 does not apply to one-person company in which there is only 1 director on the board, because if there is 1 director, you don't expect the quorum. And so records when quorum is not present. So see, section 174 does not cover a case where a board meeting is adjourned for want of quorum. And in the adjourned meeting also the quorum is not present. But if in case of an adjourned general meeting, I have specifically written there general meeting, so we are talking about general meeting, not board meeting, right? So in case of adjourned general meeting, the members present shall constitute quorum. Okay, in case of adjourned general meeting, however many number of people are would be present would be considered as quorum. This is not valid for board meeting though, because like generally authors feel it cannot be proceeded with. But ICI generally takes the assumption that in adjourned meeting there is quorum present.
Board may adopt following alternative measures when interested directors are more than or equal to 2/3 of total strength, but disinterested directors are less than 2. So this is a situation where like more than 2/3 people are interested. So what if more than 2/3 people are interested, but the remaining director, the disinterested director is just one? In that situation, appoint required number of additional directors or summon a general meeting and put such particular business for the consideration for members. Allow passing of resolution by circulation. If this is very important, 175. Let me just see which shoot to नहीं रहा है इसमें. Yeah, let's continue. So, passing of resolution by circulation. If some important business could not be voted upon at board meeting, and so business should not be deferred till next board meeting, or the business relate to a routine matter on which not much deliberation is required, or the cost of conducting board meeting is so high. In cases में the draft resolution along with all necessary proper, if any, shall be circulated to all directors at their address in India registered with the company by hand delivery, post courier or electronic means. Approved by majority of all the directors who are entitled to vote on resolution. Approved by majority of all the directors who are entitled to vote on resolution. If more than equal to 1/3 of total number of directors require a resolution be passed at board meeting rather than by circulation, chairman shall put the resolution to be decided at board meeting and not by circulation. तो ये situation क्या है, आपको circulation से निकालना है. Resolution by circulation, जैसे आप you can appoint an additional director by circulation, right? तो आपको एडिशनल डायरेक्टर करना है और आप अपॉइंट करना है, उसके लिए आप सर्कुलेशन पे कर रहे हो, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि सब इम्पोर्टेंट बिजनेस है दैट कुड नॉट, ये एक रीजंस बता रहे हैं कि क्यों सर्कुलेशन करते हैं. यूजुअली सम इम्पोर्टेंट बिजनेस कुड नॉट हैव बीन वोटेड अपॉन एट बोर्ड मीटिंग, सच बिजनेस शुड नॉट बी डेफर्ड टिल नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग. कुछ इंपॉर्टेंट काम था, इस बोर्ड मीटिंग तक नहीं हो पाया, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में हम रुक नहीं सकते, तो सर्कुलेशन हम कर देंगे. कुछ है कि रूटीन मैटर के रिलेटेड है, तो उसमें हम बोर्ड मीटिंग हर बार ही नहीं ले सकते, रूटीन मैटर सर्कुलेशन से कर देंगे. तीसरा है कि कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बोर्ड मीटिंग ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम सर्कुलेशन से करेंगे. सो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन देना है, लेकिन सर्कुलेशन के साथ भी आपको ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स उसके साथ सर्कुलेट करने हैं, या हर डायरेक्टर को भेजेंगे, उसके एड्रेस पे भेजेंगे जो इंडिया में उसके बाद रजिस्टर्ड है आपके पास. आप पोस्ट, हैंड डिलीवरी, कुरियर, इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे भी दे सकते हैं. जब ये सर्कुलेशन आप सबको दे देंगे और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स जो एलिजिबल है इस पर वोट करने के लिए वो वोट करेंगे, मेजोरिटी अगर एग्री करता है तो वो अप्लाई हो जाएगा. बट इन केस अगर मोर देन और इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ आपको अगर रिप्लाई ऐसा भेज रही है कि ये मैटर सर्कुलेशन से नहीं सॉल्व करना चाहिए या डिसाइड करना चाहिए, यू शुड सिट डाउन एंड डिसाइड ऑन दिस मैटर, तो चेयरमैन विल मेक श्योर कि नेक्स्ट मीटिंग में कवर हो जाए. नेक्स्ट मीटिंग लिया जाए, सर्कुलेशन से नहीं पास करेगा. नाउ नो रिक्वायरमेंट फॉर कोरम. सी द फॉलोइंग रिजोल्यूशन शैल नॉट बी पास्ड बाय सर्कुलेशन. अब ये नो रिक्वायरमेंट फॉर कोरम इन द सेंस कि आपको सर्कुलेशन से देना है ना, जब तो आप कोरम नहीं देखेंगे. अब आप सब डायरेक्टर्स को भेज रहे हैं तो आपको कोरम नहीं देंगे, ठीक है. फिर है फॉलोइंग रिजोल्यूशन कैन नॉट बी पास बाय सर्कुलेशन. स्पेसिफिकली बताया कि ये रिजोल्यूशन सर्कुलेशन से नहीं हो सकता है. जैसे फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर पढ़ा है हमने, एडिशनल डायरेक्टर आप कर सकते हो, लेकिन कैजुअल वैकेंसी आप सर्कुलेशन से फिलअप नहीं कर सकता, हमने पढ़ा है, याद आया ना. फिर है 161(4). फिर है 179(3). पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू मेक कॉल्स ऑन शेयर्स, इशू सिक्योरिटीज टू ऑफ अ कंपनी, बोरो मनी, इन्वेस्ट फंड, मेक लोन एक्सेट्रा. ये 179(3) बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम बाद में पढ़ते हैं. तो ये जो है तो इसका डेलीगेशन 179(3) की डेलीगेशन पे कुछ पॉइंट्स जब मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा. ये भी केस आप सर्कुलेशन से नहीं कर सकते. 182 पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, गारंटी देना, लोन देना, ये भी आप 186 सेक्शन सर्कुलेशन से नहीं कर सकते. एंड बट दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इट इज इंक्लूसिव. देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हिच यू कैन नॉट डू बाय सर्कुलेशन. रिजोल्यूशन कैसा होना चाहिए, मस्ट बी नोटेड एट सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग. जो भी रिजोल्यूशन आप अभी सर्कुलेशन से लेते हैं और नेक्स्ट सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग में आप उसको नोट करेंगे एंड शैल बी मेड पार्ट ऑफ मिनट्स ऑफ सच सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग. Place, time and day of board meeting important है. See, board meeting may be held anywhere in India or even outside India, may be held even on national holidays and may be held even after business hours. See, adjourned meeting may be held on national holidays in below 2 cases only. ये क्यों important है? Adjourned meeting कब होती है, हमने कहा था next week, same time, same place, but if it is not a holiday, public holiday, but if it is a public holiday, next working day. तो यूजुअली आप देख रहे हैं कंपनीज एक्ट क्या कर रही है कि एडजर्न बोर्ड मीटिंग को वर्किंग डे पे ले जा रही है. बट देयर आर 2 एक्सेप्शनल केसेस जहां एडजर्न बोर्ड मीटिंग हॉलीडे पे भी हो सकती है. कौन से? उसमें पहला पॉइंट है कि मेरा बोर्ड वॉलेंटरीली एडजर्न्स और ड्यूली कन्वीन बोर्ड मीटिंग फॉर अ डे विच इज अ नेशनल हॉलीडे. ड्यूली कन्वीन हुई थी, बोर्ड कोरम नहीं था ऐसा नहीं है,
ड्यूली कन्वीन हुई थी मीटिंग, फिर बोर्ड ने डिसाइड किया कि लेट्स कंटिन्यू दिस मीटिंग ऑन सो एंड सो डेट व्हिच हैपेंस टू बी अ नेशनल हॉलिडे, नो मैटर, वो उसी दिन पे ली जाएगी, नेक्स्ट वर्किंग डे पे नहीं जाएगी। मैं कोरम की बात नहीं कर रहा, अगर आपका कोरम नहीं होता है तो मीटिंग कन्वीन ही नहीं हुई, और वो कोरम नहीं होने की वजह से जो आप मीटिंग एडजर्न हो रही है वो नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस, इफ दैट इज अ नेशनल हॉलिडे और नेक्स्ट वर्किंग डे होगा, वो हॉलिडे पे नहीं होगा। और सेकंड केस है बोर्ड मीटिंग इज एडजर्न फॉर वांट ऑफ कोरम। अब ये देखिए, एंड एओए प्रिस्क्राइब सम डे फॉर होल्डिंग द एडजर्न बोर्ड मीटिंग एंड इफ द डे प्रिस्क्राइब हैपेंस टू बी अ नेशनल डे, कोरम नहीं हो पाया तो मीटिंग एडजर्न हो जाती नेक्स्ट वीक, लेकिन एओए में स्पेसिफिकली बताया था कि कोरम नहीं होने से जो मीटिंग एडजर्न होगी वो अब नेक्स्ट मंथ के सो एंड सो डेट पे होगी, और वो दिन निकल गया नेशनल हॉलिडे, बट स्टिल मीटिंग उसी दिन होगी। तो ये दो एक्सेप्शनल केसेस जहां बोर्ड मीटिंग एडजर्न बोर्ड मीटिंग नेशनल हॉलिडे पे हेल्ड की जाती है। ओके, नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ द बोर्ड विज़ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मीटिंग। दिस इज डिफरेंस, व्हाट ह्यूज डिफरेंस विल कम टू नो नाउ। When board of directors elect chairperson for a certain period known as chairperson of the board, जब एक certain period के लिए कोई बंदा elect हो गया chairperson तो chairperson of the board है। When chairman of the board is not elected or is not present or he is not willing to act as chairperson of the board meeting, the director present in the board meeting may appoint a chairperson for conduct of board meeting। ये ऐसा सिचुएशन है जहाँ chairman of the board elect नहीं किया गया है या प्रेजेंट नहीं है या वो ही इज नॉट विलिंग टू चेयर द मीटिंग, तो उस केस में जो डायरेक्टर्स है प्रेजेंट है वो डायरेक्टर्स उस बोर्ड मीटिंग के लिए एक चेयरपर्सन अपॉइंट करेंगे। हाउएवर ही रिमेन्स चेयरपर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग ओनली एंड देयरफॉर इज कॉल्ड चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड मीटिंग। यानी चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड मीटिंग वो होता है जो उस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए चेयरमैन अवेलेबल नहीं था, इसलिए डायरेक्टर्स ने उनको अपॉइंट किया। और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड कौन होता है? जो ड्यूली अपॉइंट किया जाता है चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। So as per regulation 68 of table F, chairman of the board को casting vote दिया जाता है। Casting vote means second vote, but chairperson of board meeting is not allowed to have casting vote. This is a huge difference. Now let's just let me check whether there are any minute points which I have left. See, there was a question. उसमें बोला था कि chairman मिलके decide करता है कि एडजर्न बोर्ड मीटिंग कब होगी। तो देखिए, आप एडजर्न कर सकते हैं बट एडजर्न बोर्ड मीटिंग कब होगा ये नहीं। देखिए, इसमें ऐसा है कि neither section 174(4) nor any other section of the Companies Act empowers the chairman to decide the day of the adjourned board meeting. Even with the consent of directors present, the chairman is not empowered to decide that the adjourned board meeting shall be held on next Monday. तो ये क्योंकि ये adjourned board meeting as per law ही adjourn होगी next week same time same place. हाँ, लेकिन एओए डिसाइड कर सकता है। अगर एडजर्न बोर्ड मीटिंग है और एओ में कोई स्पेसिफिक डेट दिया है तो उस डेट पे ही वो एडजर्न होगी, पर चेयरमैन और सब डायरेक्टर्स मिलकर उसको डिसाइड नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट विद मिनट्स, सेक्शन 118। मिनट्स के बारे में ऐसा है, एवरी कंपनी शैल कॉज टू बी प्रिपेयर्ड, साइन एंड केप्ट मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, meeting of class of shareholders, meeting of class of creditors, meeting of board of directors, meeting of committee of the board, in every resolution passed by postal ballot. Now, the time limit is given within 30 days of conclusion of meeting or passing of resolution by postal ballot. So, punishment of contravention, company would be penalized with 25,000 and officer in default be penalized by 5,000. Punishment for tampering, see, this punishment of contravention is of the section 30 days में नहीं करता है, but punishment of tampering with the minutes is imprisonment up to 2 years and a fine of minimum 25,000 and maximum 1 lakh rupees. Manner of signing of minutes. So, minute of board meeting, committee of board meeting, chairperson of the same meeting or the chairperson of the next meeting. तो board meeting या committee of board की जो meeting होती है उसके minutes से sign बन करेगा chairperson of that meeting और chairperson of the next meeting. अब मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग के बारे में बात करते हैं, तो मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, राइट, चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग विद इन 30 days ऑफ कंक्लूजन ऑफ सच मीटिंग एंड इन इवेंट ऑफ डेथ और इनएबिलिटी ऑफ दैट चेयरमैन विद इन दैट पीरियड बाय द डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर दिस पर्पस। सो अगर चेयरमैन का डेथ हो जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड हैव टू अपॉइंट अ न्यू डायरेक्टर फॉर स्पेसिफिकली दिस पर्पस। सेम विद रिजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट के लिए चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मैंने आपको बताया ड्यूली अपॉइंटेड, आपको डिफरेंस भी बताया चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मीटिंग का। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड साइन करेगा, अगर चेयरमैन ऑफ है ही नो चेयरमैन या इनएबिलिटी हो गई है, डेथ हो गई चेयरमैन का, उस केस में डायरेक्टर डिसाइड ऑथराइज करेंगे एक मतलब किसी डायरेक्टर को जो साइन करेगा।
प्रिजर्वेशन कब तक, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है आपको, प्रिजर्व करना है परमानेंटली, एंड ये सीएस की कस्टडी में रहेगा, या अगर सीएस नहीं है तो जो डायरेक्टर स्पेसिफिकली इसके लिए ऑथराइज किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उसकी कस्टडी में। So unless AOA otherwise provided, shareholder has no right of inspection or of taking copies of meeting of the board meeting. जब लेकिन if AOA is authorized then he can do so. और इसके अलावा नेक्स्ट हम जा रहे हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, एक इम्पोर्टेंट है, just cover this up. So चेयरमैन के ऊपर कुछ डिस्क्रिप्शन दिए, कुछ पावर्स दिए हैं. So no matter shall be included in the minute if the chairman is of the opinion that. So chairman के पास क्या ओपिनियन, अगर कुछ मैटर ऐसा है जो डिफेमेटरी ऑफ एनी पर्सन या इररिलेवेंट है, इमटेरियल है या detrimental to the interest of company, so chairman gets to decide whether he wants it to be included in minutes or not. उसकी डिस्क्रिप्शन है, और chairman shall exercise absolute discretion with regards to the inclusion and non-inclusion of any matters in the minutes on any ground specified above. अब एक केस है ना कि एविडेंशियल वैल्यू की बात है कि मिनट्स जो होते हैं ना, these are evidence of the proceedings recorded therein. So this can be treated as evidence in court of law, and again presumption can be drawn from the minutes. So it is said that when minutes are kept as per 118, then until contrary is proved, it shall be presumed that the meeting was duly called and legal and held, and that all the proceedings of the meetings were duly taken place, all the resolutions passed by postal ballot were duly passed, and in particular all the appointment of directors, scheme eligible personnel, auditors or company secretary in practice were validly made. ये मिनट्स का इतना इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए इस पे इतना ये है. फिर हमने देखा मिनट्स के बारे में, आई थिंक इसमें कवर्ड है सर, साइनिंग का भी कवर कर दिया मैंने. वैलिडिटी ऑफ एक्ट ऑफ डायरेक्टर, लेट्स गो टू 176. So no act done as a director shall be deemed to be invalid, notwithstanding that it was subsequently noticed that. So basically ये क्या बोलना चाह रहा है कि कोई भी डायरेक्टर का काम हम इनवैलिड नहीं मानेंगे except क्या लिखा है, notwithstanding that it was subsequently noticed. तो अब कैसा है, just because we have noticed some things जो मैं आगे पढ़ने वाला हूँ, that doesn't make acts done by directors invalid. Basically ये सेक्शन बोल रहा है, सेक्शन का नाम भी आप समझे, वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स, जो हमने नाम दिया वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स. तो पहला पॉइंट है हिज अपॉइंटमेंट वाज इनवैलिड बाय रीजन ऑफ एनी डिफेक्ट और डिस्क्वालिफिकेशन. तो वो बोल क्या रहा है कि जस्ट बिकॉज हिज अपॉइंटमेंट वाज इनवैलिड दैट डजंट मेड ऑल हिज वर्क इनवैलिड. ओके, एंड हिज अपॉइंटमेंट वाज टर्मिनेटेड बाय वर्च्यू ऑफ एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन द एक्ट और इन द आर्टिकल्स. सो बेसिकली उसके अपॉइंटमेंट में कुछ गड़बड़ अगर बाद में पता चलती है तो उसके तब तक के एक्ट वैलिड रहता है. एक्ट्स और एक्ट्स ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में फेवरेट सेंटेंस है मेरा पूरे कॉर्पोरेट लॉ में, पढ़ के सुनाऊं आपको. Acts of managing director के बारे में बोला है. Acts of managing director cannot be validated by this section or any section for that matter because it was not an irregular exercise of power but exercise of power by a person who had not authority. But deep है. So acts of MD validate नहीं होता इसमें. Acts of director not validate in certain cases. कुछ directors के act भी validate नहीं करते, कुछ certain cases दिए, जैसे where appointment is illegal or there is no appointment at all. Appointment हुआ ही नहीं तो उसके acts valid नहीं. Where such defect comes into the knowledge of the company, all subsequent acts done by such a director shall be invalid. Subsequent acts invalid रहेंगे. And the acts are ultra vires the company's act, against company's act कुछ कर दिया या उसके scope के ऊपर से कुछ कर दिया तो invalid रहेंगे. And act of chairman will not be valid because same MD और chairman का रहेगा. Person who deal with the directors after having notice of the defect or disqualification of the director are not protected by section 176. That means you know that director was not appointed or was appointed with some there was some errors in his appointment. Still you are doing business. So this act won't save you from it. Now audit committee बहुत अच्छा committees पे आए हैं. उससे पहले हाँ audit committee पे बढ़ते हैं. Audit committee किसके लिए mandatory है? All listed companies and all public companies जिनका PTO 1050 है. ऑल लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिसका PTO 1050 है. PTO मतलब पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर और आउटस्टैंडिंग लोन. पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 10 crores, टर्नओवर मोर देन 100 crores, आउटस्टैंडिंग लोन मोर देन 50 crores. एंड देन वी हैव कंपोजिशन. कंपोजिशन के बारे में बोला 3 डायरेक्टर्स जिसमें मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट. क्या पढ़ रहे हैं हम? ऑडिट कमेटी. ऑडिट कमेटी पढ़ रहे हैं. किसको होता है? लिस्टेड, PTO 1050. ठीक है, ध्यान.
कंपोजिशन क्या है, 3 डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट रहने चाहिए और एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी जो मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट सेक्शन 8 कंपनीज का अप्लाई नहीं होता है। वेरी गुड। फंक्शंस, पावर्स, ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको स्टोरी जैसा समझाऊंगा ताकि आपको थोड़ा बहुत याद रहे, बिकॉज मैं रट्टा करवाने में विश्वास नहीं करता। तो रिकमेंड, अब देखिए सबसे पहले फंक्शंस देख रहे हैं, उसके बाद पावर्स देख रहे हैं। सी functions that is they have to do that, that's their function, right? They have to do that. Power is something to complete or to fulfill their functions they are given some authority, powers. Okay, इस क्वेश्चंस को आपको इंटरप्रेट करते हुए ध्यान देना कि what are they expecting from us, whether they are expecting functions of audit committee or whether they are expecting powers of audit committee. So if they are asking functions of audit committee, we will answer पहला most important, recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditor of the company. Audit committee auditor का recommendation इनका मिलता है. Second, review and monitor the auditor's independence and performance and effectiveness of audit process. पहले उसको recommend करना, उसका review करना. फिर examination of financial statement and the auditor's report देना. फिर उसके काम का review कर रहा था, क्योंकि उसका financial statements को review कर रहा है, उसका auditor report को भी review कर रहा है. Then फिर approval or any subsequent modification of transaction of the company with related parties. Recommendation कर रहे हैं, फिर आप उसका ये देख रहे हैं कि उसका परफॉर्मेंस क्या, मतलब उसको रिव्यू और मॉनिटर कर रहे हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू कर रहे हैं, उसके बाद आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को भी अप्रूव करोगे. Scrutiny of inter-corporate loans and investment, valuation of undertaking or asset of the company wherever it is necessary, evaluation of internal financial controls and risk management system, and monitoring the end use of funds released through public offer or related matters. तो अब रिकमेंड कर रहे हैं ऑडिटर, आप उसको बाद में आप रिव्यू और मॉनिटर कर रहे हैं, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट एग्जामिन कर रहे हैं, रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन अप्रूव कर रहे हैं, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स को स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, अंडरटेकिंग को वैल्यूएशन कर रहे हैं, आईएफसी दैट इज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, और एंड यूज ऑफ मनी एंड यूज ऑफ फंड रेज को मॉनिटर करेंगे. ये आपके फंक्शंस है. फंक्शंस में आपको याद रखना है कि मतलब पहले रिकमेंडेशन का तो ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के केस में आप उसको सैलरी रिकमेंड नहीं करोगे, आप उसका सॉरी आप उसका ये रिकमेंड नहीं करोगे, मतलब अपॉइंटमेंट ये नहीं देखोगे आप रिकमेंडेशन. आप क्या करोगे, सिर्फ रेम्यूनरेशन देखोगे गवर्नमेंट कंपनी से, क्योंकि अपॉइंटमेंट का गवर्नमेंट करता है. इसमें एक जो मैं बोल रहा था आपका अप्रूवल ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इसमें एक ओमनिबस अप्रूवल का कंसेप्ट है. व्हाट डू यू मीन ओमनिबस अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन? इसमें एक जनरल अप्रूवल देके रखा है, कुछ एक लिमिट्स सेट आउट करके, इसके लिए आपको स्पेसिफिक से अलग से परमिशन लेनी है या एक पर्टिकुलर तरह से लेनी पड़ेगी ओमनिबस अप्रूवल. उसमें इंपॉर्टेंट फास्ट पढ़ के बता रहा हूं आपको. द ऑडिट कमिटी शैल आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्पेसिफाई द क्राइटेरिया फॉर मेकिंग ओमनिबस अप्रूवल व्हिच शैल इंक्लूड द फॉलोइंग. क्राइटेरिया क्या रहेगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन कितना होना चाहिए इन एग्रीगेट, मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रांजैक्शन कितना रहेगा, extent and manner of disclosures to be made to audit committee and review at such intervals as audit committee may deem fit, and transaction which cannot be subject to omnibus approval by the audit committee. ये 4-5 चीजें आपको देखनी है ऑडिट कमिटी omnibus approval. फिर ऑडिट कमिटी shall consider repetitiveness of transaction justification of the need of omnibus approval. फिर ऑडिट कमिटी में satisfied omnibus approval for the transaction of repetitive nature and such approval is in the interest of the company. आपको ये देखना है कि कंपनी के इंटरेस्ट में है या नहीं. ओमनिबस अप्रूवल में क्या क्या कंटेंट रहना चाहिए, नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी, नेचर और ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इंडिकेटिव बेस प्राइस या अदर इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड. एंड इफ द नीड फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी फोरसीन एंड अफोर्सेड डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल, ये हम पहले से नहीं कर पाए, तो ऑडिट कमिटी एक ओमनिबस अप्रूवल रख सकती है ट्रांजैक्शन की वैल्यू के हिसाब से विच वुड नॉट एक्सीड 1 crore रुपीज पर ट्रांजैक्शन. तो आपको नहीं, आप फोर्स ही नहीं कर पाए रिलेटेड पार्टी इन मोमेंट आता है, तो भी आप फिक्स अमाउंट रख सकते हैं कि इनका अगर हमारे पास अदर डिटेल्स नहीं है तो भी 1 crore से ऊपर एक पर ट्रांजैक्शन को ओमनिबस अप्रूवल नहीं है. फिर ओमनिबस अप्रूवल शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 financial year. इसका मतलब क्या होता है कि आपको हर साल फ्रेश अप्रूवल लेना पड़ेगा. फिर ओमनिबस अप्रूवल शैल नॉट बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ कंपनी. व्हाई? बिकॉज़ इट्स अ बिग डील, इट्स अ बिग थिंग, सो इसके लिए आप ओमनिबस अप्रूवल नहीं दे सकते. तो ऑडिट कमिटी में इम्पोज सच अदर रिस्ट्रिक्शंस एज दे डीम फिट. ये ओमनिबस अप्रूवल का इंपॉर्टेंट था, मैंने कवर करा लिया. बाकी अच्छे पावर्स में, तो पावर तो बहुत अच्छी स्टोरी है. सबसे पहले क्या है ना, आपको मैं बोल रहा हूँ पावर, पहली पावर क्या थी, कॉल फॉर कमेंट ऑफ ऑडिटर अबाउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. आपने ऑडिटर को पूछा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में, ठीक है. दूसरा आपने क्या किया, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोर्ड तक जाने से पहले उसको खुद ने रिव्यू किया.
ऑडिट कमेटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनके पावर्स की। तो पहले वो कमेंट मंगाई ऑडिटर से इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर, उसमें वो रिव्यू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर इट इज सबमिटेड टू द बोर्ड। फिर क्या करेंगे, अब वो रिव्यू करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ मिलेगा इश्यूज, तो क्या करेंगे, वो इंटरनल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर दोनों को बुला के बैठेंगे और उनसे डिस्कस करेंगे जो भी इश्यूज उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऊपर दिखे हैं। अब भाई वो डिस्कस करेंगे इशू, तो जरूर उनको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा कि उनको ऐसा लगेगा इसमें आज इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो उसके बाद आप देखेंगे ऑथोरिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू एनी मैटर रिलेटिंग टू एनी ऑफ द अफोरमेंशन्ड मैटर्स। तो मतलब आपने सबसे पहले क्या किया, आपने सबसे पहले ऑडिटर से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर कमेंट मांगा, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड तक जा रहा है उसके पहले आपने बीच में आकर उसको रिव्यू किया। रिव्यू करने पे आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो आपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को बैठाया, उसके साथ बैठ के डिस्कस किया। तो आपको लगा नहीं इसमें मैं और इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो आप उसको मैटर्स को इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हो। बट एक बात बताओ, आप इन्वेस्टिगेशन करोगे अफोरमेंशन मैटर्स, तो आपको कुछ ना कुछ तो पावर चाहिए ना। तो उसके अगले पॉइंट में देखो ना, अगले पॉइंट में क्या पावर दिया आपको दिया है दो पावर टू ऑब्टेन प्रोफेशनल एडवाइस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज एंड फुल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कंटेन इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। स्टोरी है। नेक्स्ट पॉइंट आउट ऑफ द बॉक्स है विजिल मैकेनिज्म। सबको याद रहता है विजिल मैकेनिज्म ऑडिट कमेटी ओवरसी करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कंपनी इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ विजिल मैकेनिज्म, तो ऑडिट कमेटी शैल ओवरसी सच विजिल मैकेनिज्म। अब विजिल मैकेनिज्म की इतनी बात चल रही है तो विजिल मैकेनिज्म देख लेंगे अपन। इससे पहले मुझे सी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा के रखा है ना। विजिल मैकेनिज्म में क्या है, विजिल मैकेनिज्म इज मेनली फॉर लिस्टेड कंपनीज और कंपनीज व्हिच हैव एक्सेप्टेड डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और कंपनीज व्हिच हैव बोरोड मनी फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन एक्सेस ऑफ ₹50 crore। लिस्टेड कंपनी company which have accepted deposit from public, and then company which have borrowed money from banks and financial public financial institutions in excess of 50 crore। तो तीन चीजों की तो ये एक बात हो। अब विजिल मैकेनिज्म क्या करता है, विजिल मैकेनिज्म shall provide an opportunity to the director and employees to report genuine concerns in such a manner as may be prescribed। The vigil mechanism shall provide adequate safeguards so as to prevent victimization of employees and directors। Audit committee shall oversee the vigil mechanism। If no audit committee, board of directors shall appoint a director to play role of audit committee and shall provide direct access to chairperson of audit committee or director mentioned in exceptional cases। मतलब यहाँ पे देखो क्या vigil mechanism का काम हमको समझ गया, डायरेक्टर एम्प्लॉइज को genuine cases में वो रिपोर्ट कर सके, वहाँ पे वो जो रिपोर्ट करे उनको एडिक्वेट सेफगार्ड भी देना है आपको। और ओवरसी कौन कर रहा है विजिल मैकेनिज्म को, पावर ऑफ ऑडिट कमेटी। लास्ट पॉइंट, विजिल मैकेनिज्म को कौन ओवरसी कर रहा है, ऑडिट कमेटी। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसी एक डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहिए जो ऑडिट कमेटी का रोल प्ले करेगा। फिर अब विजिल मैकेनिज्म में क्या करना है, इसमें डायरेक्ट एक्सेस देना है चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी का या जो डायरेक्टर अपने अपॉइंट किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको डायरेक्ट एक्सेस देंगे। मतलब जो एम्प्लॉय कंसर्न एम्प्लॉय जिसको तकलीफ है, विजिल मैकेनिज्म उसको डायरेक्ट एक्सेस देगा ऑडिट कमेटी के चेयरमैन का या वो डायरेक्टर का जिसको हमने अपॉइंट किया विजिल मैकेनिज्म को देखने के लिए। डायरेक्टली वो उससे बात करेगा और उनको बताएगा जेन्युइन कंसर्न जिसपे वो अभी काम करेंगे और उसका विक्टिमाइजेशन भी होगी। फिर नॉमिनेशन नॉमिनेशन कमेटी है। नॉमिनेशन नॉमिनेशन कमेटी क्या होती है, इसके पहले विजिल मैकेनिज्म कुछ पॉइंट है। हाँ, ये जैसे कि अगर फ्रिवलेस कंप्लेंट्स है रिपीटेडली फाइल कर रहा है कोई डायरेक्टर, तो फ्रिवलेस का मतलब केयरफ्री और सुपरफिशियल, मतलब जिसका कोई फैक्ट से कोई रिलेशन नहीं, ऐसी कोई एब्सर्ड कंप्लेंट्स कर रहा है तो उसको भी आप रिप्रिमांड किया जा सकता है। फिर है नॉमिनेशन नॉमिनेशन कमेटी। किसके लिए मेंटरी, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनी जिसका पीटीओ 10/150 है। इसके पहले अपन ने किसका देखा 10/150, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी देखा ना अपन, ये चेक ऑडिट कमेटी का देखा था क्या पहले। तो हाँ 250 देखा था। अभी एक और उसमें कौन जुड़ गया, विजिल मैकेनिज्म का टोटल अलग है, विजिल मैकेनिज्म अलग है। एक और जुड़ गया नॉमिनेशन नॉमिनेशन में लिस्टेड और पीटीओ है 10/150। इसमें कंपोजिशन 10/150 पेड अप टर्नओवर और आउटसाइड इनकम 10/150। अब कंपोजिशन देखिए 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। कंपोजिशन जैसा एक से लेकर नॉमिनेशन और नॉमिनेशन एंड रेगुलेटरी कमेटी का कंपोजिशन ऐसा है 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, दैट इज मेजॉरिटी होता है वैसे, बट मोर देन हाफ, एंड चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी मे बी अ मेंबर बट ही कैन नॉट चेयर दिस। फंक्शंस क्या रहेंगे इसके, अब इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई पर्सन और क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। जैसे ऑडिट कमेटी व्हाट डज फॉर ऑडिटर इज नॉमिनेशन कमेटी विल डू फॉर डायरेक्टर। सो इनका पहला क्या है, आइडेंटिफाई पर्सन और क्वालिफाइड टू बी डायरेक्टर।
carry out evaluation of every director's performance, formulate a criteria for determining qualification, positive attitudes and independence of directors, recommend to the board a policy relating to remuneration of the directors. बट ये पॉलिसी बनाते हो तब वो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि लेवल ऑफ कंपेंसेशन आप सही सफिशिएंट दे रहे हैं या नहीं, आपका परफॉर्मेंस रेम्यूनरेशन टू परफॉर्मेंस जो मतलब एज पर बेंचमार्क आपका रिलेशन क्लियर है कि नहीं, बैलेंस होना चाहिए फिक्स और इंसेंटिव पे के बीच में। जो भी ये पॉलिसी आप बनाएंगे ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट में। इसका एक्सेप्शन ऐसा गवर्नमेंट कंपनी एक्सेप्ट विथ रिगार्ड्स टू अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एंड अदर एम्प्लॉइज। सीनियर मैनेजमेंट अदर एम्प्लॉइज में आपको लग सकता है, बाकी केसेस में गवर्नमेंट कंपनी में नहीं लगेगा। सेक्शन 178 पूरा सेक्शन कंपनीज को अप्लाई नहीं होता है। कैन वी गो टू स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी, ये किसके लिए है? जिसके पास भी 1000 से ऊपर शेयर होल्डर्स है उन सब, या शेयर होल्डर्स नॉट अलोन शेयर होल्डर्स हो, डिबेंचर होल्डर्स हो, डिपॉजिट होल्डर्स हो या एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर्स हो एट एनी टाइम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, उनको स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी कंपल्सरी हो जाता है। नेक्स्ट गो टू पावर ऑफ बोर्ड। इनका काम क्या रहेगा? ऑब्वियसली shall consider and restore the grievances of security holders of the company. It's not important. Power of the board, it's very important. Let's go to power of the board. The board is authorized to do all such acts and things as the company is authorized to do. Limitation to these powers are: exercise this power in conformity to provisions, shall not exercise any power required to be exercised in general meeting, and resolution made in general meeting shall not invalidate any prior act of board which was otherwise valid. यानी बोर्ड तो सब कुछ कर सकता है जो कंपनी कर सकती है, सही बात है, लेकिन इसमें लिमिटेशन क्या है कि ऐसी कुछ पावर्स है जो प्रोविजंस के साथ नहीं चलती तो वो आप नहीं कर सकते बीइंग अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दूसरा, ऐसी कोई पावर है जो सिर्फ जनरल मीटिंग में एक्सरसाइज की जा सकती है, जो मेंबर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते। तीसरा, जनरल मीटिंग का जो रिजोल्यूशन है उसको आप इनवैलिडेट करके कुछ अलग कर रहे हो तो वो आप नहीं कर सकते। मतलब देखिए, रिजोल्यूशन मेड इन जनरल मीटिंग shall not invalidate any prior act of board which is otherwise valid। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ किया जो कि वैलिड था, बट बाद में आपने जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास किया which is invalidating what the board has earlier done, it is not allowed। फिर members cannot by a resolution passed by majority or even unanimously, देख रहे हो, supersede the board's power or instruct it as to how it shall exercise its power. So the power of management are vested in board of directors, and the board of directors alone can exercise such powers. But members are empowered to impose such restrictions and conditions on exercise of any power of board of directors as it may deem fit. But ये दो तरह से करेंगे, either AOA को में डाल के या तो डिसोल्यूशन बाय जनरल मीटिंग। तो मतलब मैं ये नहीं, वो बोल रहे हैं कि मेंबर्स सुपरसीड नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टर कर सकते तो हम भी कर देंगे जनरल मीटिंग, ऐसा अलाउड नहीं है। बट डायरेक्टर्स जो कर सकते हैं उसमें आप लिमिट्स सेट कर सकते हो। कैसे? एक तो एओए में या तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से, रिजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग से। सो द अबाउ रेस्ट्रिक्शन विल बी प्रोस्पेक्टिव ओनली, नॉट तो अब जो रेस्ट्रिक्शन आप दोगे वो पिछले काम के लिए नहीं, आगे होने वाले वो काम के लिए काम आएगा। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द सुप्रीम बॉडी हैविंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर कैन नॉट इंटरफेयर इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। Shareholder cannot supersede or usurp the board's power. Power of management is vested with board of directors, and they alone can exercise such powers. Even a unanimous resolution of shareholder will not enable shareholders to exercise the power of the board, which we just did. Board of directors have absolute power to do all the things other than those that are expressly required to be done by the company in general meeting. यानी क्या बोल रहा है कि जो जनरल मीटिंग की पावर है वो बोर्ड नहीं एक्सरसाइज कर सकता है। अब शेयर होल्डर विल बी ऑथराइज्ड टू एक्सरसाइज ऑल द पावर ऑफ द बोर्ड इन फॉलोइंग केसेस। ये जो तीन केस है, यहाँ पे अभी तक का पढ़ा हुआ सब भूल जाना पड़ेगा। ये तीन केसेस में मेंबर्स विल डू व्हाट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड हैव डन और शुड बी डूइंग वेयर द बोर्ड हैज बीन एक्टिंग मैलिफाइड, पहला पॉइंट। दूसरा, वेयर बोर्ड इज इनकम्पिटेंट टू एक्ट, और तीसरा, व्हेन देयर इज अ डेडलॉक इन द बोर्ड। ये तीन केसेस में अब यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ कर ही नहीं सकते। एक तो वो मैलिफाइडली कर रहा है, या तो इनकम्पिटेंट है, या तो वो डेडलॉक है। इन तीन केसेस में मेंबर्स विल बी एबल टू डू व्हाट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन डू। फिर है पावर एक्सरसाइजेबल पासिंग रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग ओनली। सबसे पहला ऐसी पावर्स है ये 173 में जो दी है, ये दिस पावर्स आर एक्सरसाइजेबल बाय पासिंग रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग ओनली, मतलब सर्कुलेशन नहीं चलेगा। पहला है कॉल ऑन शेयर्स, ऑब्वियस सी बात है, बड़ा डिसीजन आपको मीटिंग में ही लेना पड़ेगा। ऑथराइज बायबैक, ऑथराइज बायबैक के बारे में आपको इंपॉर्टेंट है। ऑथराइज बायबैक में नो कंपनी शैल बायबैक इट्स ओन सिक्योरिटीज अनलेस, पहला पॉइंट, ऑथराइज बाय एओए प्लस यानी एंड, ऑथराइज्ड बाय एओए एंड ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड एट जनरल मीटिंग।
अब देखिए मतलब आपको स्पेशल रिजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग भी पास करना है और एओएस ने भी ऑथराइज करना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करते हो देन यू कैन देन एंड ओनली देन यू आर ऑथराइज टू बाय बैक योर शेयर्स, ठीक है। बट ये जो मैं एसआर की बात कर रहा हूँ जनरल मीटिंग में, इसको एक्सेप्शंस है। इसको एक्सेप्शंस क्या है, मतलब एसआर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर दो पॉइंट्स फुलफिल होते हैं। पहला, बायबैक इज लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स एंड ऑथोराइज्ड बाय रिजोल्यूशन पास्ड एट बोर्ड मीटिंग। यानी आपका पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स का 10% से कम अमाउंट, 10% या उससे कम अमाउंट का आप अमाउंट अगर बायबैक कर रहे हैं तो आपको सिर्फ दो चीजें लगेगी। एक तो 10% अमाउंट कम रहना चाहिए, 10% से कम रहना चाहिए, और दूसरा बोर्ड मीटिंग का रिजोल्यूशन। और एओए में ऑथराइजेशन तो चाहिए ही है। ये तीन चीजें हैं तो आप कर सकते हो। व्हाट इफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स का 25% आपको बायबैक करना है, उस केस में आपको एओए का तो ऑथराइजेशन लगेगा ही, साथ में मेंबर्स का जनरल मीटिंग का स्पेशल रिजोल्यूशन भी लगेगा। तो ये भी मतलब इन शॉर्ट आप बोर्ड मीटिंग में ही कर सकेंगे रिजोल्यूशन इसका जो पास करना है। फिर इशू ऑफ सिक्योरिटीज, इसके लिए भी आप रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग कर सकते हैं। बोरो मनी, इन्वेस्ट फंड ऑफ द कंपनी, ग्रांट लोन, अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डाइवर्सिफाई बिजनेस ऑफ द कंपनी। इंपॉर्टेंट बिजनेस है इसलिए बोर्ड मीटिंग में आपको करना है। इसमें ऐसे अप्रूव अमलमेशन, मर्जर इंस्ट्रक्शन, टेक ओवर ऑफ कंपनी, अदर मैटर्स में पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देना है, केएमपी को अपॉइंट करना है, इंटरनल ऑडिटर, सेक्रेटरी ऑडिटर को अपॉइंट करना है। ये सब काम आपको बोर्ड मीटिंग में ही करने पड़ेंगे। फिर डेलीगेशन बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग टू, हाँ अब पावर कौन, ये जो पावर्स देखे हम कौन किसको डेलीगेट कर रहा है, बोर्ड इज ट्राइंग टू डेलीगेट टू हुम यू कैन डेलीगेट। पहले तो आप कर सकते हो किसी कमिटी ऑफ डायरेक्टर को, या कोई मैनेजिंग डायरेक्टर को, या मैनेजर को, या हम इस जो मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर्स क्या होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर, ये सब हम अगले चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो आप कमिटी ऑफ डायरेक्टर, एमडी, मैनेजर, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द ब्रांच ऑफिस, इन सबको आप डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है। डेलीगेट करना इज अ डिफरेंट थिंग एंड टू असाइन एन ऑफिस इज डिफरेंट थिंग। अभी डेलीगेट कर रहे हो अगर एमडी को, एमडी इज असाइनिंग हिज ऑफिस टू समवन एल्स, इट्स नॉट अलाउड, जो कि हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा है। अब रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ द बोर्ड, अब इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन एक्सरसाइज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सरसाइज बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन ओनली। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब कंसेंट ऑफ कंपनी। अब सेक्शन 180 में आपको बताता हूँ एग्जैक्टली। तो आपको 180, जिस गिव मी 1 मिनट, हाँ डेलीगेशन का पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। तो आप पहले बेसिकली किस किस को डेलीगेट कर सकते हो वो तो पता है, कैसे डेलीगेट करेंगे। तो जो रेस्ट्रिक्शन है वो एसआर से पास करेंगे, वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो है ना 181 ए बी सी डी, इसमें आगे लिमिट्स भी है, सब आपको 181 ए बी सी डी इसमें दिया है। इसके पहले एक्चुअली मैं एक पॉइंट कवर करना रह गया। एक पॉइंट है डेलीगेशन ऑफ पावर में। आप ये तो कर सकते हैं 5 लोगों को डेलीगेट। उसमें एक जो आपने लास्ट में पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ब्रांच ऑफिस, उस पर यूजुअली क्वेश्चंस बनते हैं। उस पर ऑथर का और आईसीआई का अलग अलग व्यू है। तो बेसिकली ऑथर ऐसा बोलता है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट सच, जैसे पहले क्वेश्चन ये था कि सेक्शन 179 इज साइलेंट एज टू पर्पस फॉर विच द मनी बोरोड बाय द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द ब्रांच ऑफिस shall be utilized. Therefore, in the opinion of author, where the power to borrow money is to be delegated to the principal officer of the branch office, it is not necessary that such borrowings must be related to the requirement of such branch office. तो मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रांच ऑफिस को जो दे रहा है आप सिर्फ उसी के रिक्वायरमेंट के लिए आप डेलीगेट कर सकते हो। बट ऑन द कॉन्ट्ररी आईसीआई ने क्या ये किया है, स्टैंड लिया है कि एज पर आईसीआई द पावर टू बोरो मनी on behalf of the company cannot be delegated to a branch officer, that is principal officer of the branch, unless the borrowing is related to the requirement of the functions of that branch office. So in exam to get marks you have to write the same. और एक important point है इसमें डेलीगेशन की बात जो कर रहा था, तो इसमें जो डी, ई और एफ का पॉइंट हमने पढ़ा है। डी, ई और एफ। डी में था बोरो मनी, ई में था इन्वेस्ट फंड और एफ में था ग्रांट लोन्स। इनके बारे में कुछ लिमिटेशंस दिए हैं, जैसे अगर आप बोरो कर रहे हो तो टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एनी टाइम कितना रहना चाहिए, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो टोटल अमाउंट अप टू विच इन्वेस्ट कर सकते हो, या नेचर ऑफ, कौन से नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट में आप कर सकते हो, या अगर आप लोन ले रहे हो तो
कितना लोन आप दे सकते हो, मतलब टोटल अमाउंट अप टू विच लोन कैन बी गिवन एंड पर्पस फॉर विच द लोन कैन बी गिवन, ये सब डेलीगेशन के वक्त आपको यू हैव टू चेक। बट इसमें इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 186 जहाँ अट्रैक्ट होता है तो पावर टू मेक लोन्स और गिव गारंटी और सिक्योरिटी और मेकिंग इन्वेस्टमेंट शैल नॉट बी डेलीगेटेड। अब अपन ये 179(3) में है, 186 में भी पावर ऑफ लोन है, उसमें लिमिट्स है। वो लिमिट्स अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर वो लिमिट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो आप डेलीगेट नहीं कर सकते। आपको फिर जो 186 में बोला है उस तरह से ही डिसीजन लेना पड़ेगा, एक कोई आदमी नहीं ले सकता। 186 क्या है, हम इसके एंड में देखेंगे पूरा चैप्टर। अब हम रेस्ट्रिक्शंस बताते हैं, कौन से रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं पावर पे। तो सबसे पहला उसने बोला है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी शैल एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर्स ओनली विद द कंसेंट ऑफ कंपनी बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन एक्सरसाइज सच पावर्स ओनली बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, दैट इज मतलब कंसेंट ऑफ द कंपनी। सबसे पहला है सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ whole or substantially the whole of one or more undertaking of the company. Second है invest the compensation received by the company as a result of any merger or amalgamation. Third है borrow money if money already borrowed together with monies to be borrowed will exceed the aggregate of paid up share capital and free reserves of the company and remit or give time for the repayment of any debt due by the director. इसमें बीच में कुछ पॉइंट्स भी है, मतलब जैसे अंडरटेकिंग मतलब क्या होता है, अंडरटेकिंग मतलब इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी इज मोर देन 20% ऑफ इट्स नेट वर्थ या कंपनी विच जनरेट्स 20% ऑफ टोटल इनकम, ये होते हैं अंडरटेकिंग। अब सब्सटेंशियली द होल और सब्सटेंशियली पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग मतलब क्या होगा, 20% और मोर ऑफ द वैल्यू ऑफ अंडरटेकिंग। तो मतलब अंडरटेकिंग बनने के लिए आपको उसके नेटवर्थ का 20% या आपकी टोटल इनकम का 20% वहां से आना चाहिए, तो वो आपकी अंडरटेकिंग हो गई। और अगर आप 20% ऑफ वैल्यू ऑफ दैट अंडरटेकिंग अगर दे रहे हो तो वो सब्सटेंशियली हो गया, तो वो अंडरटेकिंग और सब्सटेंशियली मतलब है। फिर कंसेंट कब रिक्वायर्ड नहीं होती, 181(b) में जब कंपेंसेशन कोई ट्रस्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते तो आपको उसका कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होती। फिर 181(c) के लिए टेम्पररी लोन्स, जैसे टेम्पररी लोन्स को हम बोरिंग नहीं मानेंगे। टेम्पररी लोन्स कौन से होते हैं, लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड या विद इन 6 months ऑफ द लोन। अब ये विद इन 6 months में क्वेश्चंस में क्या बोलते हैं ना कि वी हैव टेकन अ टेम्पररी लोन फॉर 3 months स्पेसिफिकली टू बाय सम कैपिटल असेट। अब ये टेम्पररी लोन बोल तो रहे हैं उसको, है 6 महीने से कम 3 महीने का ये, बट कैपिटल इसके लिए ना स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है एक्सेप्ट स्पेसिफिकली फॉर फाइनेंसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप 3 महीने के लिए भी लोन लेते हैं बट अगर द लोन इज टू फाइनेंस अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट विल नॉट बी टर्म्ड एज टेम्पररी लोन एंड हेंस इट वुड बी टर्म्ड एज अ बोरिंग। फिर है मैंडेटरी फॉर मेंबर्स टू स्पेसिफाई ओवरऑल लिमिट ऑफ द बोरिंग। मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि कैन बोरो एज मच एज यू वांट, नो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप अगर बोरिंग का राइट दे तो यू शुड गिव अ अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट ऑल्सो, कि इतने अमाउंट को बोरो कर सकते हैं। अगर एक्सेस बोरो कर भी लेते तो मेंबर्स के पास राइट है टू रेटिफाई द सेम। अब 181(d) में उसने बोला है कि डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी। उसमें ऐसा है कि अमाउंट ऑलरेडी, इसमें जो आपको दिख रहा है ना एज पर आईसीआई और एज पर ऑथर, इसमें ऐसा केस है कि अमाउंट ऑलरेडी बोरोड मतलब क्या, एज पर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट या एक्चुअली अप टू द डेट ऑफ बोरिंग, प्रपोज्ड बोरिंग। तो देखो आईसीआई क्या बोलता है एज पर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, बट ऑथर बोलते हैं कि एक्चुअली बोरोड अप टू प्रपोज्ड डेट ऑफ बोरिंग। मतलब आज अगर आप अगस्त की बात करते हैं, यस चलो लेट्स टेक नवंबर, आप अगर नवंबर में बोरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी मैं लास्ट मार्च के डेट ऑडिटेड बैलेंस शीट रहेंगे मेरे पास, मैं उसका अमाउंट देखूं बोरिंग या मैं आज के डेट में आपके बैलेंस शीट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में देखूं, क्योंकि वहां से लेके नवंबर तक आप बीच में कितनी बार और बोरो कर सकते हो, तो मैं कौन सी वाली बोरिंग देखूं। तो आईसीआई बोलता है लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट वाला, ऑथर बोलता है कि अप टू द डेट, विच इज लॉजिकली करेक्ट बिकॉज फिर तो नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो कंपनी टू कंट्रीब्यूट टू बोनाफाइड चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके पहले मेरे को जस्ट लेगेसी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने छोड़ दिए। स्पेशल रिजोल्यूशन की पॉइंट था, जो मनी ऑलरेडी बोरोड है, इसके यूजुअली क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि मनी इज ऑलरेडी बोरोड टुगेदर विद मनी टू बी बोरोड विल एक्सीड एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इन फ्रीजर्स। इसमें ऐसा है कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास बाय मेंबर शैल स्पेसिफाई टोटल अमाउंट अप टू व्हिच मनी इज बीइंग बोरोड बाय द बोर्ड, अदरवाइज सच स्पेशल रिजोल्यूशन शैल बी वॉइड। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको आप टोटल अमाउंट बता दो, एक लिमिट है,
अगर वो आपने अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया तो वो रिजोल्यूशन वॉइड हो जाएगा। बिल्कुल बोला है। आई थिंक कवर्ड दिस। इस पर काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, आप पीएम में से आप ट्राई करिएगा तो आएंगे। कंपनी टू कॉन्ट्रीब्यूट टू बोनाफाइड चैरिटेबल ट्रस्ट, अभी यहाँ से चैरिटेबल ट्रस्ट वाले आते हैं। वही है कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग लगेगा कब? इफ चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगेगा कब लगेगा? अगर चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कितने का? 5%, मतलब मोर देन 5% ऑफ एवरेज ऑफ द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। ये किस किस कंपनी को अप्लाई होता है? ये हर कंपनी को अप्लाई होता है। प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन 182 क्या बोलता है कि कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब इनडायरेक्टली मतलब किसी और के थ्रू भी डोनेशन कर रहे हैं किसी पर्सन को, डोनेशन टू अ पर्सन हु कैरी एनी एक्टिविटी which is likely to affect public support for political party, ये भी इनडायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट हो गया। या एडवर्टाइज कर रहे हैं कि पब्लिकेशन ऑफ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन इफ अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के या पब्लिकेशन में आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उसको भी हम पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन मानेंगे। कब? इफ सच पब्लिकेशन इज बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड सच पब्लिकेशन इज नॉट बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बट फॉर द एडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो मतलब कोई भी स्कोप नहीं छोड़ा है। फिर प्रोहिबिशन, कुछ कंपनीज को प्रोहिबिशन भी है। एक तो है गवर्नमेंट कंपनी और दूसरा एनी कंपनी विच हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर्स। तो जो कंपनी 3 फाइनेंशियल ईयर्स, अब फाइनेंशियल ईयर कब से देखेंगे? अगर आप 1 जनवरी को या 31 दिसंबर को हुए तो आप वो 31 मार्च छोड़ के उसके बाद के 3 फाइनेंशियल ईयर्स आप देखेंगे। 3 फाइनेंशियल ईयर्स, अगर आप 3 फाइनेंशियल ईयर्स से ज्यादा हो और आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो तो ही आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। वो भी कितना दे सकते हो? एग्रीगेट अमाउंट इन फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन कितना है? लेस देन इक्वल टू 7.5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। चैरिटेबल का था 5%, इसका है 7.5%। द लिमिट कैन नॉट बी एक्सीडेड इवन इफ सीजी अप्रूवल। सीजी अप्रूवल से भी आप इसको एक्सीड नहीं कर सकते। जैसे वहां पे आप ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से कर सकते हो, यहाँ नहीं कर सकते। दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली बाय पासिंग रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग, सीधी बात है। एंड क्योंकि मतलब सर्कुलेशन से नहीं डिसाइड कर सकते पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रीब्यूशन, हमने वहां भी पढ़ा है। मीटिंग में बैठ के आपको डिसाइड करना है। एंड डिस्क्लोजर इन पीएनएल, जो भी पार्टी को आप अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया और कौन से पॉलिटिकल पार्टी को किया, ये आपको पीएनएल में डिस्क्राइब एज अ नोट देनी पड़ेगी। डिस्क्लोजर। फिर पेनल्टी, अगर कंपनी ने कुछ इसमें फॉल्ट किया है तो कंपनी को अप टू 5 टाइम्स ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड, और कोई ऑफिसर करता है तो उसको इंप्रिजनमेंट होगा अप टू 6 मंथ एंड 5 टाइम्स का अमाउंट सो कंट्रीब्यूटेड। अब सेक्शन 241 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 क्या बोलता है? फाइनेंशियल। ये आप इतना पार्ट थोड़ा छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है कि नेक्स्ट ईयर में कर लेते हैं एग्जाम्पल में। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड पढ़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के भी क्वेश्चंस आते हैं। नेशनल डिफेंस फंड के बारे में ऐसा बोला है कि कंपनीज अबाउट टू कंट्रीब्यूट नेशनल डिफेंस फंड और एनी अदर फंड अप्रूव्ड बाय सीजी, दैट इज पीएम का नेशनल रिलीफ फंड होता है, एक्सरसाइज। तो ये फंड में आप अप्रूव फंड्स में आप डाल सकते हो और ये पावर आपको एक्सरसाइज करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिजोल्यूशन आएगा, बोर्ड मीटिंग या सर्कुलेशन दोनों चलेगा। ये पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन आपको बोर्ड मीटिंग ही था, लेकिन ये है नेशनल डिफेंस फंड में। तो नेशनल डिफेंस फंड में आप बाय सर्कुलेशन भी डिसाइड कर सकते हो। इन फैक्ट देयर इज नो लिमिट ऑफ अमाउंट एज वेल। तो आपको बस रिजोल्यूशन पास करना है, आप बोर्ड मीटिंग से कीजिए, आप सर्कुलेशन से कीजिए, कैसे भी कीजिए, और उसका कोई लिमिट नहीं है। उसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, वो तो आपको करना है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, इसका है 185। ये इसका है लोन टू डायरेक्टर्स। छोड़ रहा है नहीं, लोन टू डायरेक्टर्स स्टार्ट करते हैं। लोन टू डायरेक्टर्स में प्रोहिबिशन अंडर सेक्शन 185, नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग बुक डेट टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। व्हाट इज स्पेसिफाइड पर्सन अपन नीचे देखेंगे। मतलब आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई तरह का लोन एडवांस नहीं कर सकते स्पेसिफाइड पर्सन के लिए। गिव एनी गारंटी इन कनेक्शन विद द लोन टेकन बाय स्पेसिफाइड पर्सन और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द लोन टेकन बाय स्पेसिफाइड पर्सन। यानी आप उसको दे नहीं सकते, उसके लोन के लिए कोई गारंटी नहीं दे सकते, उसके लोन को सपोर्ट करने कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकते। अब ये स्पेसिफाइड पर्सन होते कौन है? तो स्पेसिफाइड पर्सन मतलब ए सबसे इंपॉर्टेंट है। ए फर्स्ट पॉइंट क्या है? राइट साइड के ऊपर ए लिखा है फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्टर ऑफ कंपनी या होल्डिंग कंपनी। बी है रिलेटिव ऑफ ए अबाउट, रिलेटिव ऑफ ए मतलब रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर और होल्डिंग कंपनी और कंपनी। फिर पार्टनर ऑफ ए मतलब डायरेक्टर उसका रिलेटिव उसका पार्टनर, या ऐसा फर्म जिसमें डायरेक्टर या रिलेटिव पार्टनर है, या ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें डायरेक्टर या मेंबर है, ऐसी पब्लिक कंपनी है बॉडी कॉर्पोरेट
जिसके जनरल मीटिंग में हम एटलीस्ट 25% और मोर वोटिंग पावर डायरेक्टर या दो से ज्यादा डायरेक्टर्स टुगेदर दे आर हैविंग, मतलब उनके पास राइट 25% ऑफ पावर का। फिर ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम टू एक्ट एज पर द आवर डायरेक्टर, जिसकी हम बात करें जो स्पेसिफाइड पर्सन है। अब नो प्रोहिबिशन इन सर्टन केस। अब हाँ, इसमें ना बी और ए ओपन हो गया। पहले हम सेकंड वाला पढ़ रहे जो ए है। पहला है वेयर जो हमने लोन दिया इट्स गिवन टू एमडी और डब्ल्यूटीडी। सबसे पहला एमडी और होल टाइम डायरेक्टर के लिए है ये, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस एक्सटेंडेड बाय कंपनी टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज। जब सबको मिल रहा है तो एमडी एंड डब्ल्यूटीडी आल्सो बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, उनको भी मिल सकता है। सेकंड मतलब जो अभी ऊपर लिखा है वो है कि लोन इज गिवन टू एमडी और डब्ल्यूटीडी, अगेन मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर को दिया है, और परसुएंट टू स्कीम अप्रूव्ड बाय मेंबर्स बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। तो अगर एज अ पार्ट ऑफ सर्विस हर एम्प्लॉय को मिल रहा है इसलिए उसको भी दिया है तो ठीक है, या दूसरा कोई स्कीम अप्रूव करके दिया है तो उसको भी ठीक है, मतलब एसआर के थ्रू, तो फिर वो उस केस में आप दे सकते हैं, एक्सेप्शन में आएगा, कोई प्रोहिबिशन नहीं आएगा। वेयर कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस provides loans, gives guarantees, securities for due repayment of any loan, and the interest is charged at the rate not less than the bank rate declared by RBI। तो मतलब फिर कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस में लोन प्रोवाइड करती है बैंक जैसी, और गारंटी और सिक्योरिटी देती है रीपेमेंट के लिए, तो इंटरेस्ट इज चार्ज एट रेट नॉट लेस देन बैंक रेट डिक्लेयर्ड बाय आरबीआई। तो मतलब कहीं इसमें बैंक आप इंटरेस्ट रेट नॉर्मल ले रहे हो तो इसमें अनड्यू बेनिफिट नहीं है, इसीलिए। फिर है कि वे आर लोन बाय होल्डिंग कंपनी टू होल्डी ओन सब्सिडरी कंपनी। अब जब आप होल्डिंग कंपनी लोन दे रही है सब्सिडरी होल्डी ओन सब्सिडरी को, तो और अगर सब्सिडरी कंपनी उस लोन को अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज के लिए यूज कर रही है तो वो केस में वो लोन नहीं माना जाएगा, स्पेसिफाइड पर्सन में नहीं आएगी, मतलब वो एक्सेप्टेड रहेगा, ये प्रोहिबिट नहीं रहेगा ये। या सेम चीज आपने लोन नहीं दिया लेकिन आपने गारंटी या सिक्योरिटी दी, किसी 100% सब्सिडी ने कोई लोन लेकर रखा है उसके लिए, और जो लोन उसने लेकर रखा है उसने अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए लेकर रखा है, उस केस में वो भी नॉन प्रोहिबिटेड है। या आप कोई गारंटी या सिक्योरिटी बाय होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी, अभी 100% सब्सिडी की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी बोल रहा हूँ। लोन किसने दिया है? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने दिया है, और ये जो लोन है ये भी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में यूज हो रहा है ये। लेकिन इसमें और ऊपर वाले पॉइंट्स में डिफरेंस क्या है कि वो 100% होल्डी ओन्ड सब्सिडीज है, ये नॉर्मल सब्सिडी है। इसमें एग्जाम्पशन ऐसा है कि प्राइवेट कंपनी जिसमें एससी नो बॉडी कॉर्पोरेट हैज इन्वेस्टेड मनी, तो ऐसी लाइक एग्जाम्पशन ऐसा है, ऐसी प्राइवेट कंपनी इन हुज शेयर कैपिटल नो बॉडी कॉर्पोरेट हैज इन्वेस्टेड मनी, मतलब प्योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसमें कोई बॉडी कॉर्पोरेट ने एक भी रुपया इन्वेस्ट करके नहीं रखा है, तो उसको ये एप्लीकेबल नहीं है। बोरिंग फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बॉडी कॉर्पोरेट, यानी ऐसे बोरिंग की अपने बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बॉडी कॉर्पोरेट से, इट इज लेस देन 2 into पेड अप शेयर कैपिटल और 50 crores व्हिचएवर इज लोअर, एंड नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट। ये 3 केसेस अगर ये होते हैं तो आप एक्सेप्शन में है, ठीक है। सेकेंड है सेक्शन 185 shall not apply to government company if prior approval of ministry or government taken। फिर इफेक्ट ऑफ 185 को आप अगर कॉन्ट्राविंग करते हो, ऊपर देखिए मैंने इफेक्ट लिया, कंपनी को 5 लाख से 25 लाख है, स्पेसिफाइड जो पर्सन है उनको अप टू 6 months 5 लाख 25 लाख का बोथ है। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 185 इज पॉसिबल। एडवांस मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इसमें कवर्ड नहीं होंगे, बट सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑन लोन, कोई लोन है उसके लिए सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है तो उसको हम इसमें कवर नहीं कर सकेंगे, और इसका कॉन्ट्रावेंशन किया इसलिए आप नहीं बोल सकते कि तुम वैकेट करो ऑफिस। क्यों? क्योंकि वैकेशन ऑफिस के लिए 167 अलग है, उसमें ये पॉइंट नहीं है कहीं। 167 में 185 का रेफरेंस नहीं है ना, तो इसीलिए आप उसको वैकेट करने नहीं बोल सकते। तो लेट मी जस्ट सी वेदर आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन 185। रेट्रोस्पेक्टिव मैंने कवर कर लिया, ऑर्डिनरी कोर्स कवर कर लिया है, या बाकी रिलेटिव मतलब अपना जो नॉर्मल है ना, मेंबर ऑफ एचयूएफ, हस्बैंड वाइफ और एनी अदर पर्सन, एनी मतलब फादर मदर सन सन्स वाइफ डॉटर डॉटर हस्बैंड ब्रदर सिस्टर, वो सब आएंगे, ठीक है। आई थिंक आई हैव कवर्ड मेजॉरिटी ऑफ दिस पार्ट। शुड वी गो टू नेक्स्ट? Yes, we can go to 186(1), that is restriction with respect to layer of investment। ये आप ऐसे पढ़ के छोड़ दीजिए। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि मैक्सिमम 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट आप इन्वेस्टमेंट कंपनी से आपने इन्वेस्ट कर सकते हैं।
दो लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसमें 60% और वो वाला बहुत, लेकिन अपने को यहाँ पर ज़्यादा है नहीं। सीए फाइनल की अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो बस 2 सब्सिडीज के लेवल तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर है 186 दैट इज लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी। ये इंपॉर्टेंट है। 186 रेगुलेट करता है फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस को, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेकिंग एनी लोन टू बॉडी कॉर्पोरेट और अदर पर्सन, गिविंग गारंटी ऑन और सिक्योरिटी इन कनेक्शन टू लोन टू बॉडी कॉर्पोरेट अदर पर्सन, और एक्वायरिंग बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन परचेज और अदरवाइज द सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। इन केसेस में लिमिट देकर रखी है 186(2) में। लिमिट क्या है? हायर ऑफ द फॉलोइंग 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और 100% ऑफ पेड अप फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। टू एक्सीड दिस प्रायर अप्रूवल ऑफ मेंबर्स बाय स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। एक्सेप्शन क्या है? होल्डिंग टू सब्सिडियरी एक्सेट्रा, वो जो है आगे वो एक्सेप्शंस में। तो बेसिकली अगर आप लोन दे रहे हैं किसी बॉडी कॉर्पोरेट अदर पर्सन को, या आप गारंटी दे रहे हैं इन कनेक्शन विद लोन, या आप कुछ बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन अक्वायर कर रहे हैं शेयर्स, तो आप कितना कर सकते हो ये लोन देना। और इसके पहले देखिए सेक्शन, इसमें और पहले के सेक्शन में क्या डिफरेंस है? आप जो उसमें आप लोन दे रहे थे, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे आप सिर्फ लोन दे रहे हैं, अक्वायर कर रहे हैं, आप उसमें होल्ड कर रहे हैं। इस केस में आपको 60% ऑफ हायर ऑफ द फॉलोइंग देखना है, दोनों में से जो ज्यादा होगा। पहला क्या है? 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टुगेदर, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, विच इज हायर। इसके ऊपर जाना है तो आपको एसआर लगेगा, ठीक है, मेंबर्स का। अब एसआर जो है वो आपको विद इन 1 ईयर पास करना है। और अगर इफ प्रपोज बिजनेस रिलेट टू मेकिंग लोन और गारंटी टू एनी पर्सन, एसआर कैन बी पास्ड ओनली बाय पोस्टल बैलेट एंड नॉट बाय जनरल मीटिंग। अगर आप पहले पॉइंट के लिए और दूसरे पॉइंट के लिए, मतलब आप लोन दे रहे हैं या गारंटी दे रहे हैं, मतलब पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, तो आपको एसआर सिर्फ पोस्टल बैलेट से पास करना है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए बात करें, प्रपोज बिजनेस रिलेट्स टू इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा, उसके लिए आप पोस्टल बैलेट से भी पास कर सकते हैं, जनरल मीटिंग में भी पास कर सकते हैं, बट पहले 2 केसेस में आपको पोस्टल बैलेट से ही पास करना है। एसआर मस्ट स्पेसिफाई टोटल अमाउंट ऑथराइज, या ऑब्वियसली जो एसआर रहेगा, मैं आपको पहले बोला कि विदाउट एग्जैक्ट अमाउंट स्पेसिफाइड आप नहीं कर सकते हैं। तो एसआर मस्ट स्पेसिफाई टोटल अमाउंट ऑथराइज। इसमें अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन ऑल केसेस इज रिक्वायर्ड, रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग ओनली एंड सर्कुलेशन नॉट अलाउड। उन्होंने बताया यूनानिमस अप्रूवल चाहिए, ये हमने वही पढ़ लिया था कि लोन लेने के लिए, सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको यूनानिमस अप्रूवल चाहिए, हमने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ाएंगे। तो अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन ऑल केसेस इज रिक्वायर्ड एंड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग ओनली इज पॉसिबल एंड सर्कुलेशन इज नॉट अलाउड। यूनानिमस अप्रूवल चाहिए और नो स्पेसिफिक नोटिस इज रिक्वायर्ड। 186(1) क्या बोलता है कि 186(1) बोलता है कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 186। तो 186 कहाँ अप्लाई नहीं होता? तो नथिंग, ये इंपॉर्टेंट है, नथिंग कंटेन इन सेक्शन 186 एक्सेप्ट सब सेक्शन 1 दैट इज लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, वो 2 वो छोड़ दो, 186 2 और उसके आगे का अपन पढ़ रहे हैं। ये क्यों नहीं लगेगा, कब नहीं लगेगा? पहला, एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर्स में ये नहीं लगता है, एक्विजिशन बाय एनबीएफसी नहीं लगता है, एक्विजिशन बाय कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस ही एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज है, ये एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एनी लोन मेड गारंटी गिवन और सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, या कंपनी एंगेज इन बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ कंपनी और प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इन केसेस with the provision of section 186 shall not apply to government company engaged in defense production obviously and government company other than listed company which obtain prior approval of the ministry। इसके बाद तो थोड़े छोटे सेक्शंस है, इसमें मैं एक बार देख लूं कि कुछ इंपॉर्टेंट छूटा है। where a company fails to repay deposit or interest thereon on the due date it may make loan investment guarantee or security only after default has been made good। मतलब सीधी बात है, अगर आपको अगर आपने रिपे डिपॉजिट में जब तक, मतलब आपको लोन देना है, गारंटी देना है, और आपने अगर यहाँ पे डिफॉल्ट करके रखा है, तो पहले आप वो डिफॉल्ट अपना ठीक करो, उसके बाद आप किसी और को लोन को गारंटी दो। पहले खुद के सेटल करो चीजें, फिर दूसरों को गारंटी दो। फिर नॉन एप्लीकेबिलिटी हमने पढ़ ली, इसके अंदर भी इसके भी क्वेश्चंस आते हैं, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस काफी आते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ एक सेकेंड ना, हाँ, तो अभी जो मैंने आपको पहले बोला था ना कि इन्वेस्टमेंट करने का जो पावर है, तो दिस नॉन डेलीगेशन में मैंने एक पॉइंट बोला था कि नहीं कर सकते, तो उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसमें ऐसे लिखा है कि एज पर सेक्शन 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट शैल बी मेड बाय पासिंग यूनानिमस रिजोल्यूशन एट अ बोर्ड मीटिंग ओनली।
अब आप बताइए यूनानिमस रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग मतलब कैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेलीगेट दिस पावर टू समवन? नहीं डेलीगेट कर सकते, क्योंकि अगर वो डेलीगेट कर देंगे तो वो अकेला ही बंदा डिसीजन लेगा। ये जो डिसीजन है ये यूनानिमस डिसीजन चाहिए, यानी बोर्ड मीटिंग में, नॉट इन सर्कुलेशन, बोर्ड मीटिंग में बैठ के सब लोगों ने, एवरीवन शुड एग्री ऑन दिस मैटर। इसका मतलब बोर्ड मीटिंग में यूनानिमस रिजोल्यूशन चाहिए, इसका मतलब आप ये डेलीगेट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये जिसके ऊपर डिसीजन लेना है तो सब डायरेक्टर्स को बैठ के इस पे डिसाइड करना होगा कि यस वी हैव टू गिव लोन ऑफ सच एन अमाउंट टू दिस पर्सन, राइट। तो वही बोल रहा है वो कि इस केस में power to invest surplus funds of a company in the shares of some other companies, है ना, is proposed to be delegated to managing director of the company। ये जो पावर है ना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल रहे हैं कि हम मैनेजिंग डायरेक्टर को डेलीगेट कर देते हैं, जो इन्वेस्टमेंट का पावर है। तो हमने क्या बोला, नहीं, such delegation is not permissible with the view of provision of section 186। why? because 186 specifically requires कि आपने बैठ के यूनानिमस डिसीजन लेना है, तो आप इसको डेलीगेट नहीं कर सकती, आपको बैठ के खुद ही डिसाइड करना। तो क्वेश्चन आया था कि कैन देन पावर भी डेलीगेटेड टू एमडी, तो नो, वी कैन नॉट डेलीगेट दैट पावर टू एमडी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके ही यूनानिमस डिसीजन लेके ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद छोटे छोटे सेक्शंस हैं, जैसे रजिस्टर ऑफ लोन एंड ऑल। तो रजिस्टर ऑफ लोन में देखिए कि मेंटेन करना रजिस्टर, उसमें क्या पर्टिकुलर्स जो प्रिस्क्राइब्ड है वो रहेंगे, जैसे मेंटेन करना बोला है प्रिस्क्राइब्ड वे में, वैसे आप प्रिस्क्राइब करेंगे। और रजिस्टर्ड ऑफिस आपको उसको रखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस, और इट विल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन, और उसका एक्सट्रैक्ट भी पॉसिबल है। अब मैंने ऐसे पढ़ लिया, बट इसके रूल्स दिए डिटेल्स में, ठीक है। इसके रूल्स कैसे दिए हैं, रूल दिया है कि रूल 12 कंपनी मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड पावर रूल 2014 फॉर्म एमबीपी 2 आपको करना है, मेंटेन करना है। मेंटेनिंग के लिए एंटर पर्टिकुलर्स ऑफ लोन सिक्योरिटी, ये आपको मेंटेन करना है फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन इटसेल्फ, क्रोनोलॉजिकली मेंटेन करना है, विद इन 7 days इट शुड बी केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी एंड प्रिजर्व परमानेंटली। कस्टडी किसकी कस्टडी में होना चाहिए, सीएस के कस्टडी में, आइदर मैन्युअली और इलेक्ट्रॉनिकली, एंड एंट्रीज ऑथेंटिकेटेड बाय सीएस, एक्सट्रैक्ट पॉसिबल, फीस शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 rupees पर पेज। फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम, तो सिंपल है कि कंपनी खुद के नाम पे इन्वेस्टमेंट रखना है। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है 184, क्योंकि इसकी वजह से वैकेशन हो सकता है। अगर आपने देखा वैकेशन हो सकता है जब डिस्क्लोजर नहीं करता है इंटरेस्ट। तो एवरी डायरेक्टर शैल डिस्क्लोज हिज कंसर्न और इंटरेस्ट। डिस्क्लोजर शैल बी मेड एट फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन विच ही पार्टिसिपेट्स एज डायरेक्टर, और इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, and after any change takes place in the disclosure already made by the director, and disclosure shall include shareholding as well। अब रूल 9 इसके लिए क्या बोलता है, रूल 9 बोलता है कि डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी गिवन इन फॉर्म एमबीपी 1, ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर टू गिव नोटिस ऑफ इंटरेस्ट, तो अब उसकी ड्यूटी है नोटिस ऑफ इंटरेस्ट देने का, और ऑल नोटिस शैल बी केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिजर्व फॉर 8 years एंड केप्ट इन द कस्टडी ऑफ सीएस। ये जो नोटिस दे रहे हैं ना इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, वो भी सीएस की कस्टडी में रहेगा, 8 साल के लिए प्रिजर्व करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखना है। और फिर ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर डिस्क्लोज इंटरेस्ट एंड नॉट टू पार्टिसिपेट, इसमें ऐसा बोलता है कि डायरेक्टर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली interested in contract with body corporate in which such director or other director holds more than 2% of shareholding of body corporate, or such director is promoter, manager, CEO, तो वो interested हो गया। तो या तो कोई फर्म है with a firm or other entity in which such director is partner, owner और member, तो कोई बॉडी कॉर्पोरेट का आपके पास 2% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, या आप उसके प्रमोटर, मैनेजर, CEO हो, या कोई फर्म है और उसमें आप डायरेक्टर, पार्टनर, ओनर और मेंबर हो, तो आपको ये आप उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर आपकी ये वाली कंपनी कर रही है तो आपको यहाँ पे इंटीमेट करना है कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट देना है एट बोर्ड मीटिंग इन विच द मैटर इज फर्स्ट डिस्कस्ड, और व्हेन ही बिकम्स इंटरेस्टेड आफ्टरवर्ड्स, देन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आफ्टरवर्ड्स। मतलब और व्हेन ही बिकम्स इंटरेस्टेड आफ्टरवर्ड्स मतलब क्या है कि जब फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो रही थी ना इस मैटर में, एट दैट टाइम ही वाज नॉट इंटरेस्टेड, बट उसके बाद सब्सिक्वेंटली ही बिकेम इंटरेस्टेड। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में तो नहीं बता पाएगा बिकॉज ही वाज नॉट इंटरेस्टेड। जब उसके बाद की बोर्ड मीटिंग होगी, जब वो इंटरेस्टेड हो गया, उसके बाद जो भी पहली बोर्ड मीटिंग होगी उसमें उसको बताना होगा कि नहीं, यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट चेंज हो गया, मैं इंटरेस्टेड हो चुका हूँ। वो मस्ट डिस्क्लोज नेचर ऑफ इंटरेस्ट, किस तरह वो इंटरेस्टेड है वो भी उसको डिस्क्लोज करना है, एंड इंटरेस्टेड डायरेक्टर मस्ट नॉट पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग। अब इन केस ऑफ नॉन डिस्क्लोजर क्या होगा और पार्टिसिपेशन ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट वुड बी अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी विल डिसाइड वेदर दे हैव टू गो अहेड विद द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। Let's see punishment for director of contravention। punishment क्या होगा, imprisonment up to 1 year, फाइन 50,000 से 1 लाख और बोथ। फिर 188 related party transaction, इसमें बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है।
सेक्शन 276 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 क्या बोलती है मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी? रिलेटेड पार्टी विद रेफरेंस टू कंपनी मीन्स अ डायरेक्टर और हिज रिलेटिव, केएमपी और हिज रिलेटिव, अ फर्म इन विच डायरेक्टर मैनेजर और रिलेटिव इज अ पार्टनर, or a private company in which director, manager, relative is a member or director, a public company जिसका director और manager is director and holds along with his relative more than 2% of paid up capital, body corporate जिसके board of directors are accustomed to act as per instruction of this director and manager, या any person on whose instructions our this director and manager is accustomed to act, या any company which is holding subsidiary associate of such company और सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज ऑल्सो सब्सिडरी कंपनी। इसमें क्या होता है सब्सिडरी टू होल्डिंग कंपनी मतलब एक मतलब होल्डिंग कंपनी उसके दो सब्सिडरी, वन सब्सिडरी टू, तो ये सब्सिडरी टू मतलब सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी टू विच वी आर ऑल्सो सब्सिडरी, ब्रदर, कजिन्स, करेक्ट। फिर अदर पर्सन एज मे प्रिस्क्राइब। अब 188 वन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 188 बता दें कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में सेक्शन 188 जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एप्लीकेबल होता है। It is applicable to every contract between company and related party concerning, अब यहाँ पे A, B, C, D, E, F, G इतने पॉइंट्स हैं, कितने हैं? 7 में ध्यान दीजिए। पहला क्या है? सेल, परचेज और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल। दूसरा सेलिंग, बाइंग, डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। तीसरा लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, अवेलिंग और रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एन एजेंट फॉर ए एंड बी, मतलब ए और बी में ई ऑटोमेटिक कवर्ड हो जाएगा। अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी एंड अंडरराइटिंग द सब्सक्रिप्शन। अब इन सब की लिमिट्स भी ये मैं आगे नेक्स्ट पेज में कवर कर रहा हूँ। लीगल रिक्वायरमेंट क्या बोलता है? 188 क्या बोलता है? कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग, मतलब यहाँ सर्कुलेशन पॉसिबल नहीं है। ये ट्रांजैक्शंस अगर आपको करना है 188 जहाँ पे आपको पता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ऑडिट कमेटी भी देखती है, राइट, तो उसमें आपको ये भी देखना है कंसेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग बाय रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे करेंगे कंसेंट? रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन एजेंडा ऑफ बोर्ड मीटिंग। जब वो एजेंडा मतलब नोटिस आप भेजेंगे उसमें एजेंडा में आपको ये भेजना है कि नेम, कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल टर्म्स, एडवांस पेड, प्राइसिंग, कंसिडरेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट, ये आपको नोटिस में ही सब कुछ भेज देना क्योंकि ये एजेंडा में आ जाएगा कि आप कौन सा रिलेटेड पार्टी से क्या कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं ताकि पीपल विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द मीटिंग। फिर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स जो रहेंगे दे आर नॉट टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग डिस्कशन ऑन सच मैटर इन बोर्ड मीटिंग, सीधी बात है। अब आप देखिए प्रायर अप्रूवल ऑफ मेंबर्स बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। अब इस लिमिट दी है ना जो ए बी सी डी ई जी तक हमने पढ़ा, उसके लिमिट्स दी है, किस लिमिट तक ठीक है, उसके ऊपर आपको करना है तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगेगा। अब आप देखिए पहले वाले के लिए क्या लिमिट दी है 188(1)(a, वो किस लिए था? सेल, परचेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल, उसके लिए। अब ये ए और ई दोनों मिला है इसमें। ई में क्या था? ई में सिर्फ ए अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट है, तो अगर आप सेल परचेस कर रहे हैं उसके साथ अपॉइंट कर रहे हो एजेंट, तो उस केस में आप देखेंगे 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी और ₹100 करोड़ विच एवर इज लोअर, ठीक है। बी और ई में देखिए, बी क्योंकि हमने ई में पढ़ा था एजेंट वाला, ए और बी दोनों में अप्लाई होता है, तो बी और ई में क्या देखेंगे हम 10% ऑफ नेटवर्थ ऑफ द कंपनी और 100 करोड़ विच एवर इज लोअर। ए और ई में 10% ऑफ टर्नओवर और 100 करोड़, बी और ई में 10% ऑफ नेटवर्थ और 100 करोड़। अब देखिए मजा, सी में क्या है? 10% ऑफ नेटवर्थ, 10% ऑफ टर्नओवर और 100 करोड़ विच इज लोअर। तीन है, यहाँ तक तो इजीली याद हो जाता है। अब हम बात करते हैं सी हमने देख लिया, डी और ई की बात करेंगे। उसमें 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी और 50 करोड़, ये क्योंकि अवेलिंग ऑफ सर्विसेज है, तो यहाँ पे आप 10 करोड़ ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी और ₹50 करोड़ विच एवर इज लोअर में आओ। अब जो प्लेस ऑफ प्रॉफिट की हम बात कर रहे थे एफ में, उसमें है मंथली रेम्युनरेशन शुड बी मोर देन monthly remuneration, if it is monthly remuneration is more than 2.5 lakhs, then you will have to take ordinary resolution, मतलब OR का permission, OR से permission. And last case where the net worth is more than 1% of net worth of the company, ये underwriting के लिए। फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी आपको नेक्स्ट। अब इसके आप जो भी क्वेश्चन आएगा रिलेटेड पार्टी का, आपको कुछ पॉइंट स्पेसिफिकली लिखना है, जैसे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनेक्स करना है आपको नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग में, फॉलोइंग डिस्क्लोजर करना है, नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी, फिर नेम ऑफ डायरेक्टर और पर्सन जिससे वो रिलेटेड है, और फिर उसकी क्या रिलेशनशिप है और क्या मटेरियल टर्म्स है, क्या मॉनेटरी वैल्यू है कॉन्ट्रैक्ट का, या अदर इन्फॉर्मेशन देना है। और अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेस्ट्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू वोटिंग ऑन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। इफ अ मेंबर इज रिलेटेड ही शुड नॉट वोट ऑन सच मैटर। यहाँ पे ये बोला कि ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में बात कर रहा है, अभी तक हम बोर्ड की बात कर रहे थे कि कोई डायरेक्टर रिलेटेड है,
जब ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन निकालेंगे तो हम बोर्ड जनरल मीटिंग करेंगे ना, अगर कोई मेंबर भी अगर इंटरेस्टेड है तो ही शुड नॉट बी एबल टू वोट ऑन सच मैटर। फिर ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट के मतलब, प्लेस ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या? तो भाई अगर तुम डायरेक्टर हो, इफ यू हैव हेल्ड अ पोजीशन एज अ डायरेक्टर, यू आर रिसीविंग अ रेम्यूनरेशन ओवर नॉर्मल रेम्यूनरेशन दैट यू आर सपोज्ड टू रिसीव। अगर आप डायरेक्टर हो तो आपको एक, यहाँ पे भी डायरेक्टर थे वहां पे डायरेक्टर थे, तो क्या प्लेस ऑफ प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहां से जब मैंने आपको वहां प्लेस ऑफ प्रॉफिट में प्लेस किया, यू आर अर्निंग समथिंग मोर देन व्हाट यू वर अर्निंग अर्लियर, तो मतलब आप प्लेस ऑफ प्रॉफिट में। अगर आपकी इनकम में बढ़ गई है, इसका मतलब प्लेस ऑफ प्रॉफिट में आप रिलेटेड पार्टी में आते हो। या अगर आप डायरेक्टर नहीं थे, कुछ भी नहीं थे और यहाँ पे डायरेक्टर बना दिए गए, तो बाय डिफॉल्ट आपका इनकम बढ़ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आप रिलेटेड पार्टी रहेंगे। फिर 188 नॉट अप्लाई, दैट इज ट्रांजैक्शन एंटर्ड बाय कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या अदर देन ट्रांजैक्शन व्हिच आर नॉट ऑन एएलपी। इतना डिफिकल्ट है, इन शॉर्ट वो बोल रहा है कि जो एएलपी पे वो अप्लाई नहीं होंगे, या जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हुए ऑर्डिनरी कोर्स वो भी अप्लाई नहीं होंगे। फिर कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू विदाउट obtaining consent of the board of directors या approval of shareholders by ordinary resolution and it is not ratified by board of directors and shareholders within 3 months। तो मतलब अब गलती हो गई थी तो रेटिफिकेशन तो कर सकते थे 3 महीने में। आपने क्या किया, आपने बोर्ड और डायरेक्टर्स का अप्रूवल नहीं लिया, आपने शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल नहीं लिया, ऊपर से आपने मेंबर्स से ये चीज रेटिफाई भी नहीं करा पाए 3 महीने में, तो क्या होगा? उस केस में वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट विल बी वाइडेबल एट ऑप्शन ऑफ कंपनी। डायरेक्टर विल बी लायबल टू इंडेमनिफाई द कंपनी अगेंस्ट द लॉसेस एंड कंपनी में बी इवन प्रोसीड अगेंस्ट सच डायरेक्टर। What are the effect of contravention of this section? लिस्टेड कंपनी के लिए 1 year 25,000 5 लाख पर बोर्ड, अदर कंपनीज के लिए 25,000 से 5 लाख, और गवर्नमेंट कंपनी को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अप्लाई नहीं होता है। 188 लास्ट के सेक्शंस है, ये लास्ट सेक्शन है 188 रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें वो इंपॉर्टेंट है कि अरेंजमेंट जहाँ पे डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट इन विच 188 अप्लाइज या ऑल डायरेक्टर्स कंसर्न, इन सब की डिटेल्स आपको मेंशन करने हैं। ये नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में प्लेस होगा और सब डायरेक्टर्स ने इस पे साइन करना चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस में आप इसको रखेंगे, इसका एक्सट्रैक्ट पॉसिबल है, इससे इंस्पेक्शन पॉसिबल है, और हर एजीएम में ये आपको जो है ना रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको लाना है और ये ओपन रहेगा पूरा थ्रू आउट एजीएम। और इसमें अगर अमाउंट लेस देन 5 लाख है या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो आप इसमें नहीं डालेंगे। पनिशमेंट क्या है? डायरेक्टर को 25,000 पेनल्टी है। रूल इसके लिए स्पेसिफिक क्या बोलते हैं? एनबीपी 4 आपको बनाना है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए, और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेड एट वंस, मतलब जैसी ट्रांजेक्शन होता है वैसे आपको इसमें एंटर करना है। सीएस से ऑथेंटिकेशन कराना है, रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करना है, परमानेंटली प्रिजर्व करना है, और सीएस की कस्टडी में रहेगा, और 10 रुपए से कम चार्ज में आप उसका एक्सट्रैक्ट अवेलेबल करवा के दोगे। इसके बाद इतने इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं है इसमें, जो 190 आप पढ़ लेना। उसमें मैं इनसाइडर ट्रेडिंग आपको बता रहा हूँ कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, तो आपको पता है अगर इनसाइडर ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो 5 years का आपको हो सकता है पनिशमेंट, 5 years, या मिनिमम फाइन ऑफ 5 लाख, बट मैक्सिमम फाइन कैन बी 25 crores और इवन 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड आउट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग व्हिचएवर इज हायर। तो मिनिमम तो 5 लाख फिक्स है, बट मैक्सिमम कैन बी एनीथिंग, लाइक 25 करोड़ भी हो सकता है, और मतलब 25 करोड़ मिनिमम ही हो गया, क्योंकि आपका मिनिमम अमाउंट भी अगर 10 लाख भी था तो भी आपको ऑप्शन है मैक्सिमम 25 करोड़ तक आप दे ही सकते। 25 करोड़ या 3 times द अमाउंट ऑफ फ्रॉड व्हिचएवर इज हायर, वो मैक्सिमम लिमिट हो जाता है। आप उतना तक चार्ज कर सकते हो, या बोथ इम्प्रिजनमेंट भी और फाइन भी। ये मैंने बेसिकली लेट मी सी कि मैंने बीच में कुछ पॉइंट्स छोड़े हैं क्या, नहीं कवर किया है। No, so I think I have covered every important thing except फॉरवर्ड डीलिंग्स का एक सेक्शन था, मैंने शायद कवर नहीं किया है। तो फॉरवर्ड डीलिंग्स मतलब आपको पता है राइट टू कॉल, राइट टू बाय एंड ऑल। तो वी आर बेसिकली नो डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और एनी ऑफ KMP shall buy in the company or its holding subsidiary or associate company any right to call or right as may he elect। मतलब इन शॉर्ट फॉरवर्ड डीलिंग नहीं कर सकता है एनी इंटरेस्टेड डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और KMP। व्हाट इफ प्रोहिबिशन हो गया इसका, तो किसी ने कर लिया तो उसको जो पनिशमेंट है, तो पनिशमेंट है अप टू 2 years और 1 lakh to 5 lakh फाइन या बोथ। और जो सिक्योरिटीज उसने की है वो रजिस्टर नहीं होने देंगे हम उसके नाम, मतलब पेनल्टी तो लगाएंगे प्लस उसके नाम पे वो ट्रांजेक्शन, मतलब उसका प्रॉफिट नहीं लेने देंगे हम उसको। कैसे करेंगे हम उसको? सरेंडर करने लगाएंगे। अगर डिमेटलाइज फॉर्म में है तो जो एक्विजिशन है उसको रिकॉर्ड ही नहीं होने देंगे, और अगर डिमेटलाइज फॉर्म में नहीं है तो उसको रजिस्टर नहीं होने देंगे। कंपनी के पास जब भी एप्लीकेशन आएगा रजिस्ट्रेशन के लिए उसको डिस्कार्ड कर देंगे, और इसी तरह उसको प्रॉफिट नहीं होगा और पेनल्टी हो जाएगी। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग एंड वी आर डन विद चैप्टर नंबर 5।
So thank you guys for watching. I know it was a big video, but do share and subscribe, and please show some, something, any positive thing from your side, so that I get motivated again to make more many such videos. Okay, thank you, all the best.